Okay, okay. Audible, sir, audible. Audible. So please. But speech is not. Okay, okay. No problem. Okay. As I But told. speech is not clear, sir, and some connection problem is there. So is it good now? Hello. Is it good now? Okay. As I told, intraday trading means buying and selling a stock within the same day. The position are closed before the market close for trading day. Day trading is about discipline and training of mind. Day traders maximum profits by leveraging large amounts of capital to take advantage of small price movements in highly liquid stocks or index. Because of the nature of financial leverage and the rapid returns that are possible, day trading can be either extremely profitable or extremely unprofitable. And high risk profile traders can generate either huge percentage returns or huge percentage losses. Some day traders manage to earn millions per year solely by day trading. Actually, why people are preferring day trading? Because day trading is a small time frame. You have to buy a stock or sell a stock, and you have exit the order and book your profit within before the closing of the market. You have very small time frame, and in the small time frame, you have to complete your action. Then you have to sit and relax. There are so many advantages of a day trading. First of all, zero overnight risk. No need to stay till tomorrow or like a couple of months, couple of weeks, couple of years. No. You just trade today, book your profit, and finish story. Second thing, increased of leverage. Suppose Bank Nifty future. One lot Bank Nifty future, if you originally going to buy, you have to spend near about 1,20,000 to 1,30,000. But nowadays, broker house are giving you leverage. Some are 20 times, some are giving 30 times. So it is easily that you are getting leverage from your broker house, and you can use this as your trading capital and get your profit, and it is good for you. So no need to hesitate about where you have to arrange money. This money will be arranged by your broker house. This is called leverage. This is only for day trading. Okay, third one. Third one is profit in any market direction. See, mine. In this quarantine or this corona situation, everybody, all of us know that in the month of March, maximum stock has fall down near to 70%. Some are also 80%, 90% fall down. But in this situation, day trading, there is no problem. If market is going down, you can sell your stock. If market is going up, you can buy your stock. So this is a very good opportunity. Any type of market, any type of direction, you can earn money. That depends upon your skill, that depends upon your experience, that depends upon your entry or exit. Another thing, high returns. Day trading is always a part of good income or a high return income. Sometimes, as all of you know, in expiry time, every Thursday or some of Thursday, monthly expiry or weekly expiry, some shares is going maybe 50 times, even if 100 times within minutes or within hours. This type of return nobody can give you in the world, only this day trading. Day trading requires discipline and time management, but it also affords an individual to make their own hours without a manager or boss standing over their back. Every day Hello, morning Sam go. sir. Yes, sir. सर वो अराउंड 6 पीपल्स अनम्यूट के रिक्वेस्ट दीजिए वो अनम्यूट है अभी. Okay, okay. I Kindly, mute. sir. I already request everybody to mute. No problem. I will try. Dharamraj Just दो ही Miya people active on है. mute. Me and Gaurav. Harshil Yes, Gaurav. yes, I'm going. Yeah, I'm going on mute. Yes, Harshil asked to unmute. Manjunath, please unmute. Me, Mr. okay. Khan also please request for unmute.
I think they are on mute from their side. Please. Yes. आप वो अनम्यूट पार्टिसिपेंट चैट साइट पर जाकर I write already. I asked. Yes. I unmute all. I request for all on mute. Okay, sir. Okay, thank you, sir. Please continue. Okay. So, as we learn now that day trading has various types of advantages like zero overnight risk, increased leverage, high returns, any type of market you are getting profit. Another benefit is you are the only boss, you are the own boss of your own. No need to work under any other company, or you are no need to work in other situation, some bad conditions also. You are just boss of your own. You work from yourself, you work from your home, enjoy your profit and relax your home. No need to go to office and work under some nasty bosses also. So in one side, we have seen so many advantages. In another side also so many risks, also so many negative things are there. As we know that where risk is involved, there is more return or more reward. Risk is always directly proportional to reward. If you are getting risk, go to risk, you will must be rewarded. Same in intraday, possibility of large losses also there. If you are going to losses, then you will feel stress, anxiety. Then you will trade more to get back your losses, to cover up your losses. But sometimes this is not possible. This is going for over trading. And due to over trading, you are going for again loss. And if you go for again loss, you borrowed money from your bank, from your friend, from your relatives. And sometimes it will become, maybe in a one day, you will be bankrupted. So for this situation, day trading requires a lot of time and attention paid to the markets, to follow the charts, to follow the trends, follow the technical indicators, follow the technical analysis. So this is not a meaning that tomorrow you jump to this market and trade as much as you can, and if you will get profit more than lakhs, and tomorrow you think, okay, I was profit in the Monday, and this time also I will profit. Never. This time you wash out your all trading accounts. You blow off your accounts. So that's why to understand the market, to understand the chart, understand the technical analysis, the most important to survive in the market, like in a day trading. So before we are continue, we have to know what is technical analysis and why it is important. Because we have to know, before we are become a successful trader, it is very much important to know who is a successful trader, what he does, what is his style of trading, what is his activities. We may tend to classify traders as successful based not from their profits, not from their earnings, but from their experience and from their regular income. Suppose कोई एक आदमी एक दिन में 1 crore income किया and बाकी 364 days he is losing, but another guy every day he is incoming 10,000 or 20,000 rupees every day. Who is the successful? The second one is the successful because he has the constant income. He has the constant income. But who is getting 1 crore one day and another every day is losing money? He is never a successful trader. He is a loser. He is a bigger loser. Sir, So, my yes. question is. Yes, sir. So Shubhankar. हाँ sir. माय क्वेश्चन इज, अगर आपको ये ट्रेडिंग सीखना है, जैसे आपने पहले कहा, अगर आप मतलब ट्रेड करेंगे देन आप बैंकक्रप्ट हो सकते हैं, अगर आप सीखेंगे नहीं तो बैंकक्रप्ट हो सकते हैं. जी सर. तो मेरा भी ये है, जैसे मैंने खुद सीखा, मैं खुद बैंकक्रप्ट होकर सीखा हूँ. ठीक है. ओके. ये दूसरों से पैसा बोरो करके देन उधार लेकर खुद मतलब ट्रेड करने की कोशिश किया, देन धीरे धीरे मेरा जो गलतियां था वो गलतियां सीखने की कोशिश किया. एंड अभी थोड़ा बहुत कुछ सीखा है, थोड़ा बहुत कुछ.
मतलब सर। इतना बड़ा सी में थोड़ा बहुत अगर सीखेंगे तो इससे तो काम नहीं चलता। जी तो जी अगर कोई बिगिनर है मार्केट जी, में, तो वो बिगिनर कैसे स्टार्ट करेगा? that I'm saying. Why not only सेकंड you? सेकंड क्वेश्चन, Okay, which ट्रेडिंग स्टाइल यू प्रेफर, इंट्राडे या फिर पोजिशनल? okay. As I have learned from you, from a lot, I can say one thing. आपने लूज किया है मनी, मैंने भी लूज किया है, या फिर कोई दूसरे ने लूज किया है, बिकॉज ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। हम लोगों को यस, नॉलेज नहीं था। हाँ, बट अभी जो नया ट्रेडर है, इसीलिए उनको मैं बोल रहा हूँ, पहले लर्न देन ट्राई टू अर्न, बट फर्स्ट यू हैव टू लर्न योरसेल्फ। इसलिए मैं बोला आज थोड़ा सुन के कल जाके ट्रेडिंग करेंगे, डेफिनेटली विल विन लूज। यस सर। और एक प्रॉब्लम था जब मैंने स्टार्ट किया था, तब जी इतना यूट्यूब या फिर इतना कोई मतलब वेबिनार कर रहा है, फ्री में वेबिनार कर रहा है, जिसके पास थोड़ा बहुत नॉलेज है, इस तरह की फैसिलिटी नहीं मिलता। मैं ऑफ कोर्स खुद ऑफ कोर्स। जितना भी किया हूँ इन्वेस्ट करके, मतलब पैसा देखकर सीखा हूँ। जी सर, that तो is a 2019 एंड passion inside 2021 your, that is your passion, that is डिफरेंसेस। your you know, ये आपका मेहनत है, that is your passion, that's why you are in the way of success. But some peoples are there, not some, there is a maximum peoples are there, if they are going for a loss, they सर stop their काइंडली trading. टेल स्पीक इन हिंदी। Okay, 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 I will continue in Hindi. तो मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत सारे पब्लिक है जो कि थोड़ा लॉस होने के बाद वो सीखेंगे तो नहीं, बाद में अपना हाँ, ट्रेडिंग भी बंद कर देंगे और बोलेंगे शेयर मार्केट यस, तो चलो भाई ये अच्छा नहीं है, अभी मेरे को सूट नहीं कर रहा है, ये पूरा जुआ है, ऐसा ऐसा बोल के दे विल स्क्वायर अप। द रीजन है उनके, वो पहला चीज वो लोग सीखा नहीं कुछ, वो क्या होता है उनको कुछ मालूम नहीं है। तीसरा, जैसे उनका पैसा खत्म हो गया, शेयर मार्केट जुआ है, जब तक पैसा देता था शेयर मार्केट अच्छा है। सो दीज थिंग्स ओनली कवर अप इफ वी आर लर्निंग। जितना पढ़ेंगे उतना हम लोग सीखेंगे। जैसे कि आपने बोला आपने अब तक भी सीख रहे, यू हैव एक्सपीरियंस मोर देन आई थिंक 3 years, बट स्टिल यू आर लर्निंग। 2 इयर्स, टू 2 इयर्स ईयर्स कंप्लीट होगा अभी दिसंबर में। 2 साल एक्सपीरियंस होने के बाद भी आप अब तक पढ़ रहे हैं। लेकिन नया बंदे आएंगे, वो बोलेंगे 2 दिन 2 वीडियो देख लिया यूट्यूब में, भाई मेरे को सब कुछ मालूम है। तो उनसे बेवकूफ कोई नहीं है यहाँ पे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अभी हम लोग जो कैंपेन चालू किए हैं, तो हम लोग सिखाएंगे, आप पढ़ो, ध्यान दो, पढ़ो, बाद में ट्रेडिंग करो। ऐसा नहीं कि कल से ट्रेडिंग चालू कर दो, आप ध्यान दो, पढ़ो, कुछ डाउट है पूछो। नहीं, ऐसा नहीं है, आप कल से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन हम जो ट्रेड शेयर करेंगे उस ट्रेड पर आप ट्रेड ले सकते हैं। हाँ वो है, और उसके ऊपर स्टडी क्यों शेयर किया। कल सपोज हाँ, हाँ, आपने या फिर कोई मैं या फिर कोई भी बोल सकते हैं, कलो टुमारो यू बाय बाटा इंडिया on this price 715 या 1320 बाटा इंडिया बाय, why he is saying buy on 1320 not in 1319, there is some reason। जी, 1320 पे क्यों बंदा बाय करने के लिए बोल रहे हैं, मैं 1300 में बाय करके बैठ जाऊंगा, नहीं वो नहीं सकता है। दिस पॉइंट इज कम टू 1320 देन यू हैव टू बाय द पर्टिकुलर पॉइंट। तो इसीलिए टेक्निकल एनालिसिस जरूरी है टू सर्वाइव इन अ मार्केट लाइक डे ट्रेडिंग। Technical analysis is mandatory because technical analysis will teach you to maintain discipline, to evaluate your investments, identify your trading opportunities. So this is main important thing। टेक्निकल एनालिसिस से अपने को पता चलेगा पास्ट में क्या हुआ था, क्यों हुआ था, what happened in past, why it happened, अभी क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, and what will be happen tomorrow और in future, और क्यों होगा, ये सब पता चलता है अगर हम लोग ठीक से टेक्निकल एनालिसिस करेंगे तो। और टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए अपने को क्या जरूरी है, पहला चीज फ्रॉम द बिगिनिंग, बहुत सारा चीज है, हम लोग डाटा देख के टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं, हम लोग कंपनी का फंडामेंटल देख के एनालिसिस कर सकता है, बट फॉर ए डे ट्रेडिंग द बिगर थिंग इज द चार्ट। क्योंकि जो भी ब्रोकर का प्लेटफॉर्म में हम लोग जाएंगे, वहां पे 3 चीज रहेगा, एक रहेगा प्राइस, एक रहेगा कैंडल, एक रहेगा वॉल्यूम। उसको छोड़ के दूसरा कुछ चीज नहीं रहेगा, और जो दूसरा या तीसरा चीज चाहिए दैट वी हैव टू प्लेस।
हम लोगों को उसको लगाना पड़ेगा, लेकिन ये 3 चीज हमेशा रहता है। ये 3 चीज अपने को बताता है मार्केट में क्या हुआ था, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। सो व्हाट इज ए चार्ट? चार्ट आर वर्किंग टूल्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस्ट। They use charts to plot the price movements of a stock over specific time frames. चार्ट में अपने को पता चलता है कहाँ पे प्राइस है, कहाँ पे वॉल्यूम है, कहाँ पे कैंडल है, ये सब कुछ पता चलता है। Everybody can open their trading platform. They can know what is a chart, where is the price, where is time frame, where is candle. Everybody know. Everybody can use. But we have to use this thing in a way that we have to trade in success manner. हम लोग सक्सेसफुली कैसे ट्रेड कर सकते हैं? अगर हम लोग इसको अच्छी तरह से यूज करेंगे तभी जाके हो सकता है, ना कि उसको देख लिया प्राइस ऊपर जा रहा है, बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है, हम लोग बाय कर लिया, हम लोग बाय करने के बाद बैंक निफ्टी 100% नीचे जाएगा, खत्म कहानी। We have to study how to we use this chart in a frequent manner to get success. My question is, हम बाई करने के बाद सपोज हमने बाई किया, मार्केट नीचे आता है यार, हम सेल करने के बाद मार्केट ऊपर जाता है, ऐसा क्यों होता है? That is actually our lack of knowledge. We don't know where to enter, where to exit. First of thing, if we know the entry point exactly, never will be market come down. If a market will come to down, अगर हमको श्योरिटी है मार्केट ऊपर जाएगा, then we have to wait. First thing. Second thing, मार्केट अगर नीचे आ रहा है या ऊपर जा रहा है, वहां पे हम लोगों का पेशेंस नहीं है। पेशेंस क्यों नहीं है? हम लोगों को टेक्निकल एनालिसिस मालूम नहीं है। अगर हमको टेक्निकल एनालिसिस मालूम रहेगा तो फियर करने का कुछ बात नहीं है, राइट? राइट सर? जी सर, बोलिए। ओके, अभी चार्ट पे आएंगे। हमारे पास बहुत तरह का चार्ट है, जैसे कैंडल चार्ट हो गया, बार चार्ट हो गया, लाइन हिकानाशी हो गया, रेनको, कागी, बहुत सारा बेस लाइन, बहुत सारा चार्ट है। अभी आज का टाइम पे सबसे पॉपुलर जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है, क्योंकि ये लैगिंग नहीं है और रियल टाइम डाटा और रियल टाइम प्राइस वॉल्यूम के साथ बताता है। तो हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट में हम लोग कैंडलस्टिक चार्ट के ऊपर क्यों प्रिफर करते हैं और कैंडलस्टिक चार्ट को हम लोग ट्रेडिंग में कैसे यूज करेंगे, वो हम लोग आज देखेंगे। Actually, I have unmute all, but I don't know why some people are asking to unmute, because I ask all to unmute, really. Guys, you can unmute yourself, no problem. I already unmute from my side. Okay, you can unmute yourself. Everybody can unmute from their side. Okay? Hello. Are you getting me? Yes, okay. sir. Okay. Then why Yes, why we are preferring candlestick charts? Candlestick charts, first of all, it is invented and it is first using in Japan, and it is very much popular nowadays in world of trading unity. Japanese candlesticks offer a quick picture into the psychology of short-term trading, studying the effect, not the cause. Market में अभी क्या चल रहा है, that is giving a clear reflection or a clear visible by Japanese candlestick rather than other charts. तो हम लोग अभी देखेंगे कैंडलस्टिक चार्ट जापानीज में कैसे रहता है, उसको हम लोग कैसे धीरे धीरे समझेंगे। स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? जी सर, जी सर। Yes, Yes.
ये एक एग्जाम्पल है, सिंपल एग्जाम्पल ऑफ कैंडलस्टिक बेसिक्स। ग्रीन साइड में जो है इसको हम लोग बोलेंगे बुलिश कैंडल। रेड साइड में जो दिखाई दे रहा है रेड कलर का, दैट इज बियरिश कैंडल। ग्रीन कलर का जितना हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है दैट इज वी कॉल्ड रियल बॉडी। सेम रेड कलर का जितना हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है दैट इज कॉल्ड आल्सो रियल बॉडी। ग्रीन और रेड का ऊपर का जो लाइन ऊपर गया है उसको हम लोग वीक नहीं तो शैडो बोलते हैं। सेम नीचे जो है उसको टेल नहीं तो लोअर शैडो बोलते हैं। ऊपर को अपर शैडो, नीचे को लोअर शैडो, नहीं तो ऊपर को वीक नीचे को टेल हम लोग बोलते हैं। ग्रीन सर कलर का दोनों साइड वीक बोल सकते हैं ना? दोनों साइड भी वीक बोल सकते हैं, बट इट इज बेटर इफ विल कॉल टेल बिकॉज नीचे टेल रहता है सर, ऊपर वीक रहेगा। ओके सर, ओके। ओके, सो ग्रीन कलर में ओपन जहां पे होता है, रेड कलर में क्लोज वहां पे होता है। ग्रीन कलर में क्लोज जहां पे होगा, रेड कलर में ओपन वहां पे होगा। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन ग्रीन एंड रेड इन ए लेमैन थ्योरी। सर जी, ग्रीन मतलब ग्रीन कलर मींस जहां पर ओपन होगा क्लोजिंग ओपन के अभाव होगा, जी एंड रेड कलर मींस जहां पर ओपन होगा क्लोजिंग उसके बिलो होगा। बिलो होगा, ये उसका ऑपोजिट है। ओके। दैट मीन्स ग्रीन कलर का क्लोज इज इक्वल टू रेड कलर का ओपन, ग्रीन कलर का ओपन इक्वल टू रेड कलर का क्लोज। ये लेमैन थ्योरी में अपने को समझना चाहिए, बट व्हेन यू वर्क इन डायरेक्टली इन कैंडलस्टिक इन मार्केट, दैट इज डिफरेंट थिंग आएगा। कभी कभी गैप अप होगा, कभी नीचे खुलेगा, तो अभी अपने को पता चलेगा धीरे धीरे। तो ये एक फंडा है। तो अपने को एक पता रहना चाहिए दिमाग में, ग्रीन कलर का कैंडल है तो भाई ये बुलिश हो सकता है, रेड कलर का कैंडल है तो बियरिश हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग दैट इज बियरिश और बुलिश, हो सकता है। ओके, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक्स, बट टुडे वी विल डिस्कस ओनली अबाउट इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक्स। अभी पूरा कैंडलस्टिक के बारे में पढ़ेंगे तो पूरा खत्म नहीं होगा। जो इंपॉर्टेंट और अपने को प्रॉफिटेबल बन सकता है उसके हिसाब से हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं, जिसको दुनिया का सब ट्रेडर फॉलो करते हैं, जो इंपॉर्टेंट है उनको हम लोग देखेंगे। ओके, हमारे पास एक कैंडल पैटर्न है, 2 कैंडल पैटर्न है, 3 कैंडल पैटर्न है। सबको जोड़ के भी बाद में हम लोग देखेंगे कैसे दूसरा दूसरा बड़ा बड़ा पैटर्न भी बोलता है बॉन्च ऑफ कैंडल पैटर्न को। तो बिगिनिंग में पहले हम लोग देखेंगे 1 कैंडल पैटर्न में क्या क्या आता है इंपॉर्टेंट। 1 कैंडल में अपने को आएगा पहले मारीबुजू, देन आएगा स्पिनिंग टॉप, देन इनसाइड बार, देन हैमर कैंडल पैटर्न, इन्वर्टेड हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, डोजी, ऐसे बहुत सारा आ सकता है। इसमें हम लोग देखेंगे पहले मारीबुजू क्या है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ मारीबुजू। हमने पहले देखा था जैपनीज कैंडलस्टिक पैटर्न में ऊपर वीक था, नीचे भी टेल था, लेकिन यहाँ पे देखो कुछ है नहीं। मतलब जो कैंडल में वीक या टेल कुछ भी नहीं है और ओपन इज इक्वल टू लो, हाई इज इक्वल टू क्लोज, और वो कैंडल ग्रीन होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे बुलिश मारीबुजू। देखो इसका हाई इज इक्वल टू क्लोज, लो इज इक्वल टू ओपन, मार्केट इज ओपन फ्रॉम हियर, लो भी उतना ही है, मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे बंद हुआ, हाई ऑल्सो दैट वन। सर आप मतलब काल जो कैंडल बोले थे उसके साथ ये सब ऐड किए हैं? yes I add आपने? 2 or 3 candles by request of Mr. Subhankar, ओके ओके। but the, the same thing, you just हम्म। add some these things, no problem. ओके। So this candle bullish Mariboju is telling you that now in this candle somebody is क्या हो रहा है? तो
बुलिश का जो ये कैंडल बन रहा है, बुलिश में देख लीजिए, ये हो गया आपका ओपन और लो। मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, मार्केट यहाँ से ओपन होने के बाद नीचे गया नहीं बिल्कुल, यहाँ से चालू हुआ सीधा ऊपर। दैट मीन्स यहाँ पे बुल बहुत है, मार्केट इज पॉजिटिव नाउ एंड दिस इज क्लोज हियर, दिस इज द हाई एंड दिस इज द हाई क्लोज। So that means this candle is full of bulls. Suppose मार्केट का प्राइस यहाँ पे 7 रुपीज था, तो यहाँ पे जाते जाते 10 रुपीज हो गया, नीचे भी गया नहीं और जहाँ पे गया वहां पे भी क्लोज हुआ। That means full of bulls. It is a purely bullish candle. Same side. This is a red candle, clearly showing that it is a bearish candle, but this is open is equal to high. यहाँ से ओपन हुआ और सीधा स्ट्रेट फॉल and closing also equal to the low. Full of bears are active there. यहाँ पे बुल का कुछ नामो निशान है नहीं. You can consider that market is now bearish condition. We are giving an example in market. Okay. So I was showing you the example of a bullish. See, this is a clear view of bullish candle. I think it is visible to all. सर ये स्क्रीन को तो आप एक्सटेंड कर सकते हैं, Okay, okay. कर सकते हैं ना? करता हूँ मैं. Actually, I am not frequent in this Zoom application, so that's why the problem nothing. नहीं, आप इसको मतलब पीपीटी से पावर पॉइंट से स्क्रीन को फुल स्क्रीन कर सकते हैं. F5 दबा दीजिए सर, F5 दबा दीजिए. F5. सर ये नीचे जूम के पास भी है बटन फुल स्क्रीन करने का, और नीचे जाइए कर्सर लेके. Okay, now visible. उसके बाद नहीं उसके बाजू में ना फुल स्क्रीन का एक बटन है, उस पे क्लिक कीजिए. ये मतलब ये जो स्लाइड्स है, ये स्लाइड्स को हटा सकते हैं, शॉर्ट स्लाइड्स को. सर ये वाला, हाँ ये स्लाइड्स को हटा सकते हैं. F5 दबाने से नहीं हो रहा है क्या सर? नहीं, कंट्रोल F5 है, सिर्फ ओनली F5. ओनली F5 नहीं हो रहा है. और अगर आप लैपटॉप में होंगे तो आपको वो फंक्शन F5 दबाना पड़ेगा. नहीं सर अभी बड़ा. नीचे देखिए सर नीचे देखिए, जूम जहाँ पे है सर, जो 112 पर है उसके साइड में कप टाइप का है सर, उसमें क्लिक कर दीजिए. मैं अभी हो गया ना बड़ा, मैं दिख के बाजू में, कमेंट्स के बाजू में सर, कमेंट्स के चौथे नंबर बाजू में, चौथे नंबर बाजू में राइट में लीजिए. हाँ राइट में सर, उसके बगल वाला सर, राइट टुवर्ड्स राइट, नहीं उसके बगल वाला, हाँ ये वाला. हाँ जूम में है ना, जूम है, मैं जूम किया है यहाँ पे ऑलरेडी, चेक कीजिए. नहीं जूम नहीं सर, ये जूम के पहले ये माइनस लिखा है ना, उसके बाजू वाला. हाँ ये वाला, हाँ ये वाला. उसको क्लिक किया, हो गया. यस हाँ अभी होगा. सर अब नीचे जा रहे, ऊपर जाना पड़ेगा सर. स्क्रॉल को उल्टा घुमाइए सर, स्क्रॉल को उल्टा घुमाइए हो जाएगा, जो बटन है उसको उल्टा घुमाइए आ जाएगा वहाँ पे. ओके. मतलब हम ये करते नहीं कभी ना, इसीलिए. Okay, sorry guys. Okay, now it is ready. Yeah. ओके सर. So आप चेक कर लीजिए example of bullish Mariboju और bearish Mariboju and after what is happening in the market. See,
Here is your bullish Maribojo. That means in this candle, full of buyers are active, and they take out your market directly top. मार्केट को ऊपर लेके गए देखो. फिर यहाँ पे देखो बियरिश पर्सन चालू हो गया, बियर ज्यादा हो गया, बियरिश Maribojo बना, फिर मार्केट नीचे. ये है कि सपोज Maribojo यहाँ पर बना, लेकिन हमें एंट्री कहाँ पर लेना है? Sir, that I will discuss once I will finish this candlestick patterns. That we have to discuss about where we have to entry and how we have to trade. मतलब trade कैसे करेंगे? That I will take another session. No problem. This is only familiar with candlestick patterns, as I mentioned. Okay, उसके बाद हमारे है hammer. Hammer is a completely bullish candle. If it is forming in the down part, hammer is a completely bullish candle. One candle pattern that occurs in a downtrend when bulls make start to step into the rally. आप ये बस याद रखो, hammer में एक small real body होगा कैंडल का टॉप में. कलर कुछ भी हो, कुछ जरूरत नहीं है. ग्रीन हो सकता है, रेड हो सकता है, नो प्रॉब्लम. दिस इज बुलिश. रेड होगा तो भी बुलिश, ग्रीन होगा तो भी बुलिश. लोअर शैडो जो है वो रियल बॉडी से 2 गुना. जी सर, हथौड़ा. हथौड़ा सर. लोअर शैडो इज एटलीस्ट ट्वाइस बड़ा होना चाहिए उसका बॉडी से. ज्यादा बड़ा होगा और अच्छा है. जो बॉडी में ऊपर के लिए थोड़ा सा शैडो हो सकता है, ना भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम. प्रीवियस ट्रेंड डाउन होना चाहिए, मतलब मार्केट नीचे आ रहा है, डाउन ट्रेंड है, बेस में एक हैमर बना और वो हैमर रेड बने, ग्रीन बने, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी बने, देन इट विल बी ऑटोमेटिक चेंज द मार्केट टू रिवर्स ट्रेंड. विल गिव द एग्जांपल नाउ. विल चेक हाउ इट इज वर्क्स बुलिश. दिस इज ए क्लियर एग्जांपल ऑफ हैमर. This is a hammer, this is a hammer. Both are bullish. You can ask, this is red color candle, but how it is bullish? Yes, it is bullish. Because this shadow or this tail is full of bulls. Because market को ये लोग, आपको मालूम है रेड कलर कैंडल में ओपनिंग यहाँ पे, ओपन यहाँ पे हुआ था, ऊपर होने के बाद नीचे तक आया और यहाँ से उसको बुल ने पुश करके ऊपर लेके चला गया और यहाँ पे क्लोज किया. दैट मीन्स दिस एरिया इज फुल ऑफ बुल्स. यहाँ पे बुल बैठे हैं, सब मार्केट को ऊपर लेने के लिए बैठे हैं यहाँ पे. और ये कहाँ पे बन रहा है? मैं बोला ये हमेशा मार्केट का नीचे बनेगा, डाउन ट्रेंड में, बॉटम पे बनेगा. ऊपर बनेगा तो ऊपर नहीं जाएगा. अगर ये नीचे बन रहा है तो मार्केट को ऊपर लेके जाएगा. एक एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, एक डाउन ट्रेंड में. इसका बॉडी एंड शैडो का रेशियो कितना होना चाहिए? सर एटलीस्ट आई टोल्ड 2 times. If bet more than 2 times, it is very good. Okay, sir. 2 गुना से ज्यादा हो रहा है तो और अच्छा है. At least 2 times, near by 2 times होगा और अच्छा है. यहाँ पे we'll go for example, no problem. यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड मार्केट है, ये अपना बेस लाइन है. मार्केट यहाँ पे रुका हुआ है, ना नीचे जा रहे हैं ना ऊपर जा रहे हैं. यहाँ से देखिए ये 4-5 कैंडल तुरंत मार्केट को नीचे लेके गए और बुल वाला मार्केट को धक्का देके ऊपर देके फिर ऊपर लेके आएगा. और ये जो टेल है, ये टेल पे पूरा बुलिश पब्लिक बैठा है एंड दे स्ट्रेस द मार्केट टू अप. सी मार्केट. सर अगर आप बैंक निफ्टी का लास्ट फ्राइडे का अगर चार्ट चेक करेंगे तो मे बी वहां पर जो रिवर्सल आया था उस रिवर्सल पर भी आपको हैमर पैटर्न दिखेगा. मिलेगा सर. आई हैव ऑल एग्जांपल्स नाउ. आई विल गो फॉर एग्जांपल. ओके. सो दिस इज एग्जांपल ऑफ एक्सिस बैंक 29th October 27th October of 2020. See, market is a completely downtrend. मार्केट नीचे आया. नीचे आने के बाद देखो यहाँ पे एक हैमर बना नीचे. दिस ग्रीन कलर का हैमर एट बॉटम. देखो यहाँ तक बॉटम नहीं था मार्केट में. मार्केट में यहाँ पे बॉटम बना. बॉटम बनने के बाद मार्केट तुरंत स्पाइक हो गया अप ट्रेंड. फिनिश. तो आपको ये देखना है हैमर पैटर्न में. पहला चीज
प्रीवियस ट्रेंड बियरिश होना चाहिए। देखो प्रीवियस ट्रेंड डाउन ट्रेंड, बियरिश ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड नीचे आ रहा है, और दिस hammer must be formed at the bottom of the market। मार्केट का जहां पे बॉटम है, यहाँ पे बनेगा तो नहीं होगा, यहाँ पे बनेगा तो नहीं होगा, ऊपर बनेगा तो नहीं होगा, ये मस्ट बी इन द डाउन ट्रेंड, बॉटम में बनना चाहिए। बॉटम में बना हमर, और इसका जो बॉडी से वीक है एटलीस्ट 2 टाइम्स बड़ा होना चाहिए। दैट मींस दैट प्रूव्स दैट बुल्स आर पुशिंग द मार्केट एंड द रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू। मार्केट मतलब आप हैमर बटन को एक रिवर्सल बटन बोल सकते हैं। जी, it is a completely reverse pattern if it is formed in the bottom of the market। यहाँ पे साइकोलॉजी क्या है, इन ए डाउन ट्रेंड और विद इन ए पुल बैक, डाउन ट्रेंड में भी हो सकता है, पुल बैक में भी हो सकता है। ए शार्प इंट्राडे सेल ऑफ इज फॉलोड बाय ए रिवर्सल व्हिच कॉजेस द स्टॉक क्लोज नियर टू इट्स ओपनिंग प्राइस और डे हाई एंड द रियल बॉडी इज पुश्ड बाय बुल्स टुवर्ड्स अप ट्रेंड। ये उसको ऊपर लेके जाएंगे, इसमें कुछ सोचने का ही नहीं है। सर क्वेश्चन था। जी सर प्लीज। सर अभी आपने जो दो अपने अभी एक्सिस का दिखाया और उससे पहले और एक पैटर्न दिखाया सर, दोनों में एक ही चीज दिखाया सर। जब भी हम लोग का हैमर पैटर्न बनता है सर, उससे पहले 4 या 5 कैंडल वो कंसोलिडेशन फेज में आता है, उसके बाद एक हैमर बन रहा है। इसको एक्चुअली ऑब्जर्व करना है क्या सर? फर्स्ट थिंग मैं देखो आपको 3 कंडीशन बताया। फर्स्ट यू हैव टू सी मार्केट इज इन ए डाउन ट्रेंड और नॉट। मार्केट नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपको सोचने का कुछ जरूरत नहीं है, फॉरगेट। ओके, डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, नो डाउन, नो प्रॉब्लम, डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। सेकंड में दिस थिंग मस्ट बी इन बॉटम पार्ट, बॉटम में होना चाहिए। अगर कुछ बॉटम नहीं है, इससे पहले जो ट्रेंड चल रहा था वो डाउन ट्रेंड है, लेकिन आप देखोगे स्क्वीज करके, जब देखोगे चार्ट को आपको पता चल जाएगा कि ये बॉटम में है या मिडिल पे है या टॉप पे है, ये आपको पता चल जाएगा। ओके, अगर बॉटम में हो रहा है, डाउन ट्रेंड हुआ था और वहां पे ये हैमर बन रहा है, कोई भी कलर का हो, ग्रीन कलर का हो, रेड कलर का हो, नो प्रॉब्लम, और इसका बॉडी से इसका जो विंग है और सॉरी जो टेल है 2 टाइम्स बड़ा होना चाहिए। ओके, देन इट इज इन द मार्केट। एंड आई विल, मेरा क्वेश्चन ये है कि सपोज ये हैमर तो बन रहा है, लेकिन कॉन्फर्मेशन के लिए मुझे ये हैमर कहां पर मिलना चाहिए? अगर सपोर्ट पर मिलता है, ये क्या मुझे और कॉन्फर्मेशन देता है कि रिवर्सल के चांसेस बहुत ज्यादा है यहाँ से? as I told sir, it must be in the bottom. Bottom means sir one type of support is there, that is the complete support। support में बन रहा है, हैमर कैंडल बन रहा है, और उसको ज्यादा कंफर्मेशन के लिए उसके बाद एक ग्रीन कलर का कैंडल होना चाहिए। दैट हाउ वी ट्रेड इन all these candlestick patterns। that for that I will make another session। today I just familiar you guys with candlestick patterns। ऐसा नहीं कि कल डाउन ट्रेंड में बन गया, बुलिश हैमर बन गया, we will jump for trading, no, I request no, because there is some another things where we have to buy, what are the other criteria for buying, that is a complete different section। today you just familiar with candles, then we will go for what are the criteria to enter for buying or selling। Understand? ये हैमर को हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी देख सकते हैं? देख सकते हैं, बट वी हैव टू नीड मोर बिगर टाइम फ्रेम। अगर हम लोग स्विंग के लिए देख सकते हैं तो हम लोग बड़ा टाइम फ्रेम लेंगे। अभी इंट्राडे के लिए बोल रहा हूँ, तो इंट्राडे में हम लोग 5 मिनट का, नहीं तो 15 मिनट का, 3 मिनट का देख सकते हैं। अगर हम लोग स्विंग का ले सकते हैं तो 1 दिन का देख सकते हैं, नहीं तो 1 आवर का देख सकते हैं। एवरीथिंग इज और मुझे लगता है आवरली चार्ट में भी बेस्ट होगा स्विंग के लिए। यस, आवरली चार्ट अच्छा है, डे चार्ट भी अच्छा हो सकता है, बट दिस थिंग इज इट इज वर्किंग इन व्हेन दिस हैमर इज फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ डाउन ट्रेंड एंड इन द बॉटम और इन नियर टू द सपोर्ट, जो कि अपने को चेंज होने के लिए अच्छा लगेगा। See, this is a USA market chart। Market is falling, downtrend, 1 hammer is there, 2nd hammer is there, 3rd hammer is there, and market will go up
because this is the support line, this is the bottom line. इससे नीचे जा नहीं सकते मार्केट. मार्केट वहां पे रुका हुआ है. मार्केट वहां पे रुका हुआ है. बुल पब्लिक ज्यादा आया, मार्केट को ऊपर लेके गया with hammers. And we can use this as for swing trading, but in a bigger time frame. We don't follow 5 minutes or 15 minutes for swing trading. As Mr. Subhankar told, we follow 1 hour or 1 day for the swing trading. It is better. सर यहाँ पर मैं जस्ट के मेंबर हूँ, ठीक है, इतना भी इम्पोर्टेंस मत दीजिए मुझे. Okay, now we'll go for inverted hammer. Inverted hammer same hammer जैसा ही है, उसमें कुछ डिफरेंट है नहीं, बस उसका उल्टा पैटर्न है. हमर में हम लोग देखे थे कि शैडो जो है, टेल जो है नीचे बना था, इसमें ऊपर बनना चाहिए. ये हो गया अपना इन्वर्टेड हैमर. ये भी सेम बुलिश पैटर्न है, नीचे बनना चाहिए सपोर्ट के पास. रेड कलर का हो, ग्रीन कलर का हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. मार्केट को ये लोग ऊपर खींच के लेके जाएंगे. ये एक बुलिश कैंडल है श्योर. एक एग्जांपल, मार्केट देखिए नीचे, ये एक सपोर्ट बन गया, यहाँ पे पूरा बॉटम बन गया, रेड कलर का कैंडल बना हैमर का, मतलब यहाँ पे बुलिश एक्टिव और मार्केट इज गोइंग अप. दिस इज कॉल्ड इन्वर्टेड हैमर. We'll give an example of Axis Bank now. See, Axis Bank is falling and you can see here is a clearly support zone. एक सपोर्ट बन रहा है, यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है. देखिए एक रेड कलर, आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ. देखिए एक रेड कलर का इन्वर्टेड हैमर है, एक ग्रीन कलर का इन्वर्टेड हैमर है. That is more confirmation that market will go up. Market will be boom. This is 30th September 2020. सर तो हैमर में कलर भी मैटर नहीं करता है और उसका साइड भी मैटर नहीं करता है ना? नहीं, कलर मैटर नहीं करता है कि इन्वर्टेड है या नॉर्मल हैमर है. नॉर्मल हैमर है. वो डायरेक्ट बुलिश क्यों होगा, मतलब कंफर्म बुलिश? अगर नीचे बन रहा है, जैसे शुभंकर सर ने बोले. क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट करेंगे. क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था सर कि मतलब ग्रीन रहो, रेड रहो, या नॉर्मल रहो या इन्वर्टेड रहो, वो बुलिश पैटर्न ही बनाएगा और नीचे रहना चाहिए बस. तो वो कंफर्मेशन है ना कि ट्रेंड के तरफ से आप देखेंगे इन्वर्टेड हैमर मोस्टली अप ट्रेंड में भी काम ज्यादा देता है. अगर अप ट्रेंड में इन्वर्टेड हैमर हो रहा है तो ये मार्केट डाउन ट्रेंड हो सकता है. अच्छा, तो आप ट्रेंड में इन्वर्टेड हैमर होगा तो उसको तो आप ये बोलते हैं हैंगिंग मैन, सॉरी शूटिंग स्टार. इन्वर्टेड हैमर को तीन तरीके से आप बोल सकते हैं. आप शूटिंग स्टार भी बोल सकते हैं, आप हैंगिंग मैन भी बोल सकते हैं, आप इन्वर्टेड हैमर भी बोल सकते हैं. लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आता है तीनों के. आपको जो कैंडल है ना, वहां पर थोड़ा सा डिफरेंस, लेकिन लुक्स लाइक सेम. अच्छा, am I correct? Yes. That will be make it different when it is forming. नीचे अगर बन रहा है डाउन ट्रेंड में, हम लोग उसको हैमर बोलेंगे और इन्वर्टेड हैमर बोलेंगे. अगर ऊपर बन रहा है उसको हम लोग हैंगिंग मैन नहीं तो शूटिंग स्टार बोलेंगे. और ये याद रखने के लिए इजी हो जाएगा. ओके सर, इन्वर्टेड हैमर तो मेनली आपको अप ट्रेंड में ही दिखता है. अगर डाउन ट्रेंड में अगर इन्वर्टेड हैमर आपको दिखेगा तो क्या काम करता है ये? सर यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ यू एज एन एग्जांपल इज देयर एक्सिस बैंक का. एक्सिस बैंक देखिए कंटिन्यूअस फॉल हुआ, 2 इन्वर्टेड हैमर बना यहाँ पे, 1 2 इन्वर्टेड हैमर एंड मार्केट विल गो अप. ओके, अनदर एग्जांपल इज वो मतलब लास्ट में होता है तो उसका काम होता है. मैं भी चार्ट एनालिसिस कर रहा हूँ तो देख रहा हूँ इन्वर्टेड हैमर लास्ट में आता है तो फिर ट्रेंड रिवर्सल होता है. Yes. See, this is another example. It is a completely support line. देखिए पूरा support. Mostly 90% cases, not for all the cases. देखिए मार्केट यहाँ पे पूरा सपोर्ट गया, मार्केट ऊपर आया और ऊपर से नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया. देखो इन्वर्टेड हैमर, मार्केट इज गोइंग अप. ओके,
सो नाउ विल गोइंग फॉर अनदर हैंगिंग मैन। अभी जो बोल रहे थे हैंगिंग मैन, आप याद रखिए हैंगिंग मैन मतलब बियरी से, और ये ऊपर बनना चाहिए। सेम हमर है, जो हमर नीचे बना है उसको बोलेंगे हमर, जो कैंडल ऊपर बनेगा उसको बोलेंगे हैंगिंग मैन, और ये बियरी से। इसका पैटर्न है, थोड़ा ऊपर भी वीक आ सकता है, नहीं आएगा तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। डाउन ट्रेंड में ये मैं यहाँ पे आपको जानने के लिए ऑपोजिट रखा है। देखिए हमर है, मार्केट गोज डाउन, सेम कैंडल सपोर्ट के पास बना, मार्केट ऊपर गया, और ये बाय सिग्नल है, आपको ऊपर जाना चाहिए। सेम कैंडल मार्केट ऊपर गया और ये ऊपर बना, मार्केट नीचे आया, सेल सिग्नल। दिस इज कॉल्ड हैंगिंग मैन। This is the difference between hammer and hanging man. Otherwise, everything is same. Rule is same, structure is same, everything. But only नीचे डाउन ट्रेंड में बॉटम में सपोर्ट के पास बनेगा उसको हम लोग हैमर बोलेंगे। अप ट्रेंड में ऊपर रेजिस्टेंस के पास बनेगा उसको हैंगिंग मैन बोलेंगे। ओके, नाउ एग्जांपल, दिस इज चार्ट ऑफ मारुति, क्लियरली अप ट्रेंड, हैंगिंग मैन एट टॉप, रेजिस्टेंस के पास बना, रेजिस्टेंस के पास बना, एंड यू सी द फॉल। सी ओके, ये हो गया आपके हैंगिंग मैन। अभी आएगा शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार तो एक स्मॉल क्वेश्चन ये है कि जी सर, कि मतलब हैमर के जो उसमें ओपन इक्वल्स टू क्लोज ऐसा रहना जरूरी है कि ऊपर भी छोटा सा हेड या विंग हो सकता है? थोड़ा सा आएगा चलेगा, ऐसा नहीं कि वो रियल बॉडी से बड़ा होना नहीं चाहिए। उसका जो बॉडी है ना उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर उससे बड़ा हो रहा है तो उसको हम लोग हैमर या फिर शूटिंग स्टार कुछ कंसिडर नहीं करेंगे। उसका रीजन है, आप सोचो क्या है, मैं एक बता रहा हूँ। आपको दिखाई दे रहा है ना शूटिंग स्टार का पेज, ये ओरिजिनली है क्या? शूटिंग स्टार कहाँ पे बनना चाहिए? मार्केट का ऑप में बनना चाहिए, रेजिस्टेंस के पास। ओके, रेजिस्टेंस के पास बन रहे मतलब यहाँ पे सपोज रेड कलर का कैंडल बना, दैट मीन्स मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, रेड में ओपन होके ऊपर तक गया, यहाँ तक गया। ओके, यहाँ तक जाने के बाद फिर प्रेशराइज होके नीचे आया, दैट मीन्स बियर आर एक्टिव। ओके, अगर और नीचे जा रहा है, अगर फिर नीचे यहाँ तक आ रहा है, उसको फिर ऊपर खींच के लेके जाएंगे, दैट मीन्स यहाँ पे और एक वीक बन जाएगा। समझ रहे हैं? नीचे और एक फेल बन जाएगा ना, तो उसमें बड़ा वीक रहेगा नीचे, बड़ा वीक रहेगा तो उसमें कौन है? बुल्स है। ओके, बुल्स, राइट। अगर बुल्स होगा तो मार्केट नीचे कैसे आएगा? नहीं आएगा ना, राइट। तो इसलिए रेजिस्टेंस के पास बनेगा, बॉडी छोटा होना चाहिए, ऊपर का वीक बड़ा होना चाहिए, नीचे का अगर वीक नहीं है तो सबसे अच्छा है, अगर है तो थोड़ा बहुत होना चाहिए, तो अभी मार्केट नीचे आ सकता है। देखिए यहाँ पे मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ लेकिन ऊपर तक गया, जाने के बाद उसको प्रेशराइज किया गया, बियर लोगों ने वहां पे उसको बियर ने प्रेशराइज किया, प्रेशराइज करने के बाद वीक बॉडी को नीचे बोला के छोटा करके छोड़ दिया। उसको नीचे ले आए। जी सर, सेलर इसको नीचे ले आए, बायर ने उसको ऊपर तो ले गया, लेकिन वहां पर कंसिस्टेंट, वहां पर इतना बाइंग प्रेशर नहीं था, जिसके चलते सेलर एक्टिव होने के बाद सेलर उसको नीचे क्लोजिंग दिया। ओके, सो दैट मींस दैट्स व्हाई as I told, the उसका स्ट्रक्चर इज द सेम, हमर, इन्वर्टेड हमर, शूटिंग स्टार, आपका हैंगिंग मैन, स्ट्रक्चर एंड शेप, साइज, एवरीथिंग इज सेम, बट थिंग इज वेयर इट इज ओपनिंग। इफ इट इज फॉर्मिंग इन द डाउन and near to support, then this hammer will be move the market to top. Agar these things are forming in the top, they will pressurize the market to the down. और कुछ नहीं है इसमें, बस अपने को जगह देखना चाहिए कहाँ पे ये बन रहा है। Okay, this is shooting star finish. Now we'll give the example. See, this is Axis Bank. Market is going up. See, simple. In front of you, see, shooting star is in the top. आप देखिए मार्केट को यहाँ से ऊपर तक लेके गया, और भी ले सकते थे ना ऊपर, क्यों लेके नहीं गए? ये जो वीक बना है, ये जो आप जो बोल रहे हैं वीक बोल रहे हैं,
इसको ये जो वीक है यहाँ पे सेलर आ गया, ये प्रेशराइज किया, उसको प्रेशराइज करके बॉडी को यहाँ पे छोटा करके छोड़ दिया और मार्केट में नीचे आ गया। अगर सेम चीज आपको बोलेंगे नहीं यहाँ पे बनाए तो हुआ नहीं, क्योंकि दिस इज नॉट टॉप, टॉप इज हियर, दिस इज द रेजिस्टेंस, दिस इज द रेजिस्टेंस जोन, सी मार्केट इज फॉल डाउन। होप यू आर गेटिंग। ओके इसका बॉडी इतना बड़ा है तो ये भी इन्वर्टेड हैमर है। जी 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 चलेगा, ऐसे कुछ नहीं। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं अच्छा, इंट्राडे टाइम फ्रेम में दिस इज द इंट्राडे, इट्स अ 3 minute time frame, 3 minute time frame। See, I am giving you another टाइम फ्रेम इंट्राडे के लिए। That depends upon you, what is suitable for you. I am preferring 5 minutes and 3 minutes. For confirmation, 15 minutes. Okay. If it is suitable for you, Okay, you okay. follow this. Otherwise, no problem. ये Another और example. एक क्लैरिटी मैं कर देता हूँ यहाँ पर। सपोज आप बुक्स पर पढ़ रहे हैं इन्वर्टेड हैमर का बॉडी रेशियो 1:2 होना चाहिए, लेकिन आप जब रियल टाइम में ट्रेडिंग करने जाएंगे तो वहां पर हर वक्त आपको 1:2 नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ये आपको थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना पड़ेगा, क्योंकि हर वक्त आपको कॉपी बुक पैटर्न चार्ट्स पर नहीं मिलेगा। यहाँ पे सर देखिए, ये वही एक्सिस बैंक का है। आप देखो, मैं यहाँ थोड़ा गलती से लिख दिया हैंगिंग में है, एक्चुअली दिस इज शूटिंग स्टार। से देखिए क्लियरली शूटिंग स्टार, जी जी जी, मैं इसके शूटिंग बाद स्टार, शूटिंग स्टार। अगर आपको बनता है तो अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। जी सर, शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार, 4 शूटिंग स्टार यहाँ पे बना हुआ है। दिस इज कंप्लीटली एग्जांपल ऑफ शूटिंग स्टार। फॉर इन दिस केस यू हैव टू ब्लाइंडली ट्रेड, नो प्रॉब्लम, ब्लाइंडली रेजिस्टेंस, shooting star, shooting star, shooting star, shooting star. Market to see result, a weak fall. This day Axis Bank 3% fall within minutes. Okay. Now we will go for the most important candle, doji. Doji are various types of doji are there. See, have a look this page. There are so many types of doji. There are originally 5 types of doji. One is standard, one is long-legged, dragonfly, gravestone, and 4 price doji. Okay. मतलब आपको यहाँ पे कुछ कलर दिखाई नहीं देगा, कभी कभी दिखाई देता है, नहीं तो जी इसका ओपन लो हमेशा नजदीक रहेगा। बॉडी का नाम पे कुछ चीज यहाँ पे आपको पता नहीं चलेगा, जो रियल बॉडी है या नहीं है कुछ पता नहीं चलता है। अगर डोजी बन रहा है दैट मीन्स मार्केट में अभी कुछ होने वाला है। वहां पर ओपन लो नहीं, ओपन एंड क्लोज होगा। हाँ, ओपन एंड क्लोज। अगर डोजी स्टैंडर्ड डोजी बन रहा है देन इनडिसिसिव मार्केट है। अगर ड्रैगन फ्लाई डोजी बन रहा है या फिर ग्रेवस्टोन डोजी बन रहा है, ऐसा वाला या फिर ऐसा बन रहा है, मार्केट अभी चेंज हो सकता है। और ये जो 4 प्राइस डोजी आपने देखा होगा कभी कभी बनता है, बहुत रेयर केस बनता है ये। और ये जो लॉन्ग लेग डोजी ये बहुत ज्यादा बनता है। ये पेज को आप देख लीजिए, फिर अपना हम लोग इसका कैसे काम करते हैं उसको हम देखेंगे। सर वीडियो को ऑफ कर देना। जी सर, ओके, हो गया सर। ओके, देखिए ये वही एक्सिस बैंक का है, मार्केट इज इन टॉप। आप डोजी देखिए ऊपर बना है, डोजी ऊपर बना, मार्केट इज गोइंग डाउन। डोजी मींस ये जो कैंडल है यहाँ पे देखिए रियल बॉडी कुछ है नहीं, थोड़ा सा रियल बॉडी है। दैट मीन्स मार्केट ऊपर जा रहा था, जो बुलिश है वो थोड़ा बहुत वहां पे है, बस उनका काम वहां पे खत्म होने को आया। बुलिश एंड सेलर्स आर, सॉरी, बियर एंड सेलर्स आर टेक ओवर द मार्केट।
market they push the market to the down. This is doji. Another example of doji. Market is going down, and see doji is here. Long leg doji, and this is full of, you know, buyers are active here. In this stick, full of buyers. There is no real body, no bears are active, nothing. Only buyers are active and they take over the market and fly the market through the. As I told, कभी भी डोजी बनेगा अगर सपोर्ट के पास डोजी बन रहा है या रेजिस्टेंस के पास डोजी बन रहा है, that means there is a chance of trend reversal. इंडिसेसिव हो गया, अभी ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है. Okay, and doji is the one of the most important candle for day trading and for scalping also. For a day trading, intraday trading, doji forming near the support or resistance is the most important thing, the most important candle. Okay, another part now is inside bar. ये कैंडल अपने को पता नहीं चलता है, हमारे आंखों के सामने बनेगा, रिजल्ट दे के चला जाएगा, but we guys cannot catch this thing. This is important candle. इनसाइड बार देखिए, एक रेड कलर का कैंडल है, उसके अंदर एक ग्रीन कलर का कैंडल प्योरली बना है. यहाँ पे ग्रीन कलर का कैंडल है, उसके अंदर रेड कलर का कैंडल बना है. इनसाइड बार, और इसको हम लोग कभी कभी बोलते हैं मदर कैंडल के अंदर जो कैंडल बनता है. एक एग्जांपल है इसका. इसमें क्या है, इनसाइड बार कैंडल एक बड़ा कैंडल के अंदर कभी कभी एक, नहीं तो दो, नहीं तो तीन, कभी चार, कभी ऐसा बहुत सारा कैंडल रहता है. इससे क्या होता है, वो एरिया कंप्रेस हो जाता है. जैसे हम लोग कंप्रेस करते हैं ना स्प्रिंग को, वो स्प्रिंग जैसा कंप्रेस होकर रहता है. देखिए ये एक बड़ा कैंडल है, उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 7 कैंडल है. आप अगर उसका ऊपर एक लाइन खींचेंगे और इसका नीचे एक लाइन खींचेंगे, हाई लो, देखिए पूरा कंप्रेस हो गया है. मार्केट कभी ये कंप्रेस एरिया में नहीं रहेगा, मार्केट या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा डेफिनेटली. अगर कभी टाइम पे ये इसका नीचे को तोड़ रहा है, 100% इट विल गो डाउन. बिकॉज आप जैसे स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे, अगर हाथ छोड़ देंगे स्प्रिंग के ऊपर चला जाता है. द सेम थिंग यहाँ पे, ये कंप्रेस्ड कैंडल स्टिक जो बन गया 4-5 या फिर जितना भी बना एक इनसाइड बार के अंदर, कभी ये बार से बाहर आएगा तो मार्केट विल बूम. सेम अपसाइड के लिए देखिए, नीचे बना, कंप्रेस होके एक जगह पे 4-5 कैंडल रहा, जैसे इनसाइड बार का लो या हाई को तोड़ा, मार्केट ऊपर. इसको बोलते हैं इनसाइड बार कैंडल. दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट कैंडल. एग्जांपल आप देखिए, इसको एग्जांपल देखिए, बैंक निफ्टी में बना था, देख लीजिए 3 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, इनसाइड बार कैंडल. इसके अंदर देखिए 1 2 3 4 5 5 कैंडल है वहां पे. और टाइम प्राइस कितना मूवमेंट हुआ है, ओनली 60 पॉइंट मूवमेंट हुआ है. स्टॉक लाइक बैंक निफ्टी मूवमेंट मस्ट बी 500-600 पॉइंट्स पर डे, एंड हियर ओनली 60 पॉइंट मूवमेंट्स व्हिच इज नॉट सुटेबल. और उसके बाद इसका हाई तोड़ा, हाई तोड़ने के बाद देखो रिजल्ट तुरंत ऊपर. सेम चीज, ये रेड कलर हो गया मदर कैंडल, उसके अंदर देखो इनसाइड कैंडल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. जैसे इनसाइड नीचे तोड़ा, 2-3 कैंडल में 200 पॉइंट फॉल. सेम यहाँ पे. ये चीज लाइव मार्केट पे आप याद रखो कैसे काम करता है ये इनसाइड बार कैंडल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. एनी डाउट ऑन इनसाइड बार कैंडल? हेलो, इनसाइड बार में क्या विक्स नहीं रहेगा? वीक्स भी रह सकता है, वीक्स भी नहीं रह सकता है, दैट डजंट मैटर. बट एक कैंडल के अंदर बहुत सारा कैंडल बनना चाहिए. वीक्स रहेगा तो और अच्छा. वीक्स रहेगा तो कैंडल. यस, इनसाइड बार कैंडल है ये. जी सर. जस्ट फॉर एग्जांपल दिस वन, इनसाइड डे पैटर्न में ये इनसाइड बार कैंडल है, इसके अंदर ये कितना कैंडल आया, जैसे लो ब्रेक किया नीचे,
और क्लियर व्यू के लिए इसको देख लीजिए। ये एक हो गया इनसाइड बार कैंडल। जैसे ही हाई ब्रेक करेगा या फिर उस कैंडल का लो ब्रेक करेगा, जी सर, मार्केट उसी तरफ जाएगा। जी सर, मैं बोला सेम सर, ऐसा बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पर भी 2 दिन पहले इनसाइड बार कैंडल बना था। जी सर। यहाँ पे देखिए सर, ये कंप्रेस्ड है, ये इसके अंदर ये कैंडल आ गया, और भी ढेर सारा कैंडल आ सकता है। कंप्रेस होके इन सिमिलर रेंज और स्मॉल रेंज में मार्केट बहुत टाइम रहा, जो कि रहना नहीं चाहिए। उसके बाद if it is breaks is high, then jump. If it is breaks low, go fall down. Okay. सर वन क्वेश्चन, Please. ये विक्स जो इनसाइड बार के अंदर जो कैंडल बनेगा, वो विक्स उसके ऊपर रह सकता है आपके हिसाब से? नहीं मैडम, अगर विक्स ऊपर रहता है, देखिए ये कैंडल देखिए, दिस इज नॉट एन इनसाइड बार कैंडल, दिस इज नॉट एन इनसाइड बार कैंडल। इनसाइड बार कैंडल जो है मैडम, इसको देखिए, नो, फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज प्रीवियस हाई, प्रीवियस लो कैंडल, दिस इज ए बिग कैंडल। इनसाइड बार कैंडल उसका अंदर होना चाहिए, देख रहे हैं? एंड व्हेन इट लीव्स द पोजीशन, इसको जब वो डिस्कनेक्ट हो गया, इसलिए आप होस्ट बन गया है। ओके ओके सर, जस्ट okay, okay, are you visible? Hello? Yes, 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 yes. Okay, okay. So inside bar candle हमेशा एक कैंडल के अंदर होना चाहिए, एक सर्टन प्राइस रेंज पे रहना चाहिए। जब भी ये प्राइस रेंज तोड़ेगा, इट विल बी ब्रस्ट। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कैंडल। कभी कभी बनता है, अभी जब भी बनेगा सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास, इट विल बी गिव यू बेनिफिट 100%। आप ये एग्जांपल देख लीजिए, ये वाला देखिए। एंड सबसे पावरफुल अगर कोई पैटर्न होगा, सबसे पावरफुल पैटर्न वो है इनसाइड बार कैंडल। यस 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 यस। अगर वर्क इन स्टॉक्स वेरी मच। हेलो, दिस इज दिस वर्किंग इन स्टॉक्स वेरी मच। हेलो सर। हाँ जी, जी सर। सर थोड़ी देर बाद अगर आपका जब पीपीटी क्लियर हो जाएगा, तब आप मुझे थोड़ा बहुत वो होस्ट कर देना, मैं आपको और दो एक एग्जांपल दिखा दूंगा, लाइव एग्जांपल। जी जी जी। Now we are going. Now we okay. Now we'll go for two candle patterns. This is over of first candle pattern, one candle pattern. Now we'll go for two candle patterns. अभी हम लोग ने एक हैमर देखा, एक शूटिंग स्टार देखा, एक एक कैंडल कैसे मार्केट को चेंज करता है। अभी हम लोग देखेंगे दो दो कैंडल कैसे चेंज करता है। एक से दो तो पावर ज्यादा रहेगा हमेशा। अभी दो कैंडल कैसे बन के मार्केट को ऊपर या नीचे लेके ट्रेंड करा सकते हैं, वो देखेंगे। तो टू कैंडल्स पैटर्न में बहुत सारा टाइप आ सकता है, लेकिन मैं जो इम्पोर्टेंट उसको ही लिया। बुलिश एनगल्फिंग, बियरिश एनगल्फिंग, बुलिश हरामी, बियरिश हरामी, ट्विजर टॉप, ट्विजर बॉटम। These 6 candle patterns are most important for a intraday purpose. So Mr. Gaurav, from this time now your course will be start, because yesterday you cover all that. Now this is for you new start. Okay. Yes, yes. So you see bullish engulfing. Just follow this candle. See, just observe this candle, how it looks. बुलिश एनगल्फिंग मतलब एक रेड कैंडल, उसके पास एक ग्रीन कैंडल बड़ा सा रहेगा। एनगल्फिंग मतलब इन इंग्लिश में क्या है? एनगल्फिंग मतलब एक साइड से घेर लेना, उसको बंद कर देना। ये देखो, ये जो रेड कलर कैंडल है, इसको ये ग्रीन कलर कैंडल ने ब्लॉक करके रखा है। अगर पब्लिक कोई यहाँ पे खड़ा रहेगा ना, ये रेड कलर कैंडल दिखाई नहीं देता है उसको। दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। तो दिस रेड कलर कैंडल इज कंप्लीटली एनगल्फ्ड. This red color candle is completely engulfed
or blocked by this big green one. इसका मतलब है रेड का बियरिश का ट्रेड अभी खत्म होने को आया. ऑलरेडी बायर्स टेक ओवर द मार्केट. मार्केट को ये लोग ले लिया अभी हाथ में. एक एग्जांपल देखिए, मार्केट डाउन, एक बड़ा सा रेड कैंडल बना है यहाँ पे, उसके उससे भी बड़ा ग्रीन कलर कैंडल बना है. देखो, it is this red color candle is completely covered by, completely blocked by this green one, and market going up. This is called bullish engulfing, and this is a purely bullish candle, and it must be formed in the bottom, or you can say the support of the chart. चार्ट का सपोर्ट में बनना चाहिए, डाउन ट्रेंड में बनना चाहिए, और बॉटम में बनना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए. The red color candle is covered by the green one, and this is considered as bullish engulfing, and the result is informed of you now. Okay, we'll see the example. सर तो एंट्री कहाँ पे लेनी पड़ेगी? मतलब ये क्लोजिंग पे लेना पड़ेगा कि नेक्स्ट कैंडल के स्टार्टिंग में? Trading. You are asking about when we have to enter. Hello. जी क्वेश्चन क्या था वहां पर? सर क्वेश्चन ये था कि एंट्री कहाँ लेनी पड़ेगी, क्लोजिंग में लेना है कि नेक्स्ट कैंडल के स्टार्टिंग में? ना तो एंट्री और एग्जिट के लिए हम नेक्स्ट में आते हैं पहले वो. अच्छा ठीक है, चलेगा वो बाद में कर लेते. कैंडल्स देख लीजिए. Entry, exit, and trading, stop loss, and trial stop loss, everything I will conduct another session. This is only familiar with the candlesticks, because वो अगर हम लोग जाएंगे तो उसमें बहुत सारा चीज है. ओके ठीक है. तो अभी एग्जांपल ऑफ बुलिश एनगल्फिंग कैंडल, ये बैंक निफ्टी में देखिए एक डाउन ट्रेंड. सर एक मेरा एक क्वेश्चन था जी, कि यहाँ पर ये जो इतना बिग ग्रीन कैंडल दिख रहा है, उस दिन मार्केट में क्या हुआ था? पहले 1 मिनट में क्या हुआ था? मैं भी थोड़ा कंफ्यूज था वहां पर. नहीं, आपका क्या मानना है, वहां पर क्या हुआ था इस कैंडल में? एक्चुअली कैंडल इज ओपन हियर, मार्केट नीचे ओपन करके उसको जबरदस्ती ऊपर लेके गए. आप वीक देखो, आंख के पलक झपकने से पहले इतना हो गया. हाँ सर, 600 पॉइंट का मूवमेंट हो गया. यस. ऑन दैट डे हाउ मच यू प्रॉफिट? ओके, अभी देखिए ये वो टाइम पे मार्केट का सपोर्ट पे एक रेड कैंडल, उसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल, बुलिश एनगल्फिंग, एंड मार्केट इज गोइंग अप. देन मार्केट अगेन रिवर्स. यहाँ पे देखिए रेड कलर कैंडल, उसको ब्लॉक किया ग्रीन कैंडल, बुलिश एनगल्फिंग एट बॉटम, एंड ट्रेंड इज रिवर्स, मार्केट इज गोइंग अप. So this is an example of bullish engulfing. Now we'll go to its opposite, bearish engulfing. Same thing हम लोग bullish engulfing में देखा था. रेड कलर का कैंडल को ग्रीन कलर का कैंडल कवर करेगा नीचे. अभी देखेंगे ग्रीन कलर का कैंडल को रेड कलर का कैंडल कवर करेगा ऊपर, और नीचे आएगा मार्केट. एग्जाम्पल हियर, सी ग्रीन कलर का कैंडल कवर्ड बाय रेड कलर का कैंडल, and market going down. एग्जाम्पल. इसी जगह पे देखिए मार्केट ऊपर लेके गया. यहाँ पे देखिए कि ग्रीन कलर का कैंडल है, उसको रेड कलर का कैंडल ने कवर करके रखा है, एंड मार्केट गोइंग डाउन. ओके, एग्जाम्पल ऑफ bearish engulfing. मार्केट गोइंग ऑफ, ग्रीन कलर कवर्ड बाय रेड कलर, मार्केट गोइंग डाउन. दिस इज निफ्टी का है, मार्केट गोइंग अप, ग्रीन कलर कैंडल, रेड कलर engulfing, market fall down. This is bearish engulfing. Then coming bullish harami. Bullish harami
it must be formed in the bottom or downtrend at the support level. एक रेड कलर का बड़ा कैंडल, उसका बीच में एक छोटा सा ग्रीन कैंडल. देखिए रेड कलर का बड़ा कैंडल, उसका नीचे छोटा सा बड़ा कैंडल, ऊपर जाएगा मार्केट. एटलीस्ट 50% और रेड कैंडल का बॉडी को कवर करना चाहिए. जी. फॉर एग्जांपल बायोकॉन का चार्ट है. मार्केट इज इन अ डाउन ट्रेंड, रेड कलर कैंडल प्रीसाइडेड बाय, देखिए पूरा छोटा सा ग्रीन कलर कैंडल यहाँ पे बना है. देखिए बहुत छोटा सा. ये कंप्लीटली एग्जांपल ऑफ बुलिश हारामी एंड मार्केट विल बी जंप. दिस इज कॉल्ड बुलिश हारामी. अभी आएगा इसमें लास्ट में जो नीचे है हैमर, लास्ट स्लाइड में हैमर भी बनाया ना नीचे. हाँ सर. जी 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 हैमर भी बनाया. अच्छा बनाया. हैमर बना ऊपर में इनसाइड पर कैंडल भी आपको दिखेगा जब डाउन ट्रेंड में आ रहा था. राइट. ये दिस पेज इज ओनली फॉर बुलिश हारामी, सो दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू बुलिश हारामी एग्जांपल. यस सर. अगर उसके बाद हम लोग डायरेक्ट चार्ट पे जाएंगे, हम लोग फाइंड आउट करेंगे क्या क्या बनाए. ओके सर. अभी आएंगे हम लोग बियरिश हारामी. इन अपट्रेंड्स द हारामी कंसिस्ट ऑफ ए large candle followed by a small green candle that is called as bearish harami. मतलब मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा, ग्रीन के अंदर रेड कलर का छोटा कैंडल है, मार्केट गोइंग डाउन. सेम बुलिश हारामी का ऑपोजिट है. देखिए मार्केट ऊपर है, ग्रीन, उसके बीच में रेड कलर का कैंडल है. इधर आपको क्या मिला? अप ट्रेंड. पहला चीज अप ट्रेंड में है. सेकेंड वन बुलिश कैंडल. थर्ड वन मार्केट थोड़ा सा ऊपर खोके जाके खोला. फोर्थ में बियरिश कैंडल. एंड दिस इज ए complete information, complete confirmation of bearish harami and ready for fall. Fall starts. So what are the criteria for harami candles? It may be bullish or it may be bearish. For bullish harami, criteria is it must be downtrend. See, we are in downtrend one. Second, bearish candle. See, this is bearish candle. Third, last one, small bullish candle inside the red candle. Small bullish candle inside the red candle in the support area. See, this is the support area. This is the downtrend. And सबसे यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है प्रीवियस जो कैंडल था उस कैंडल का लो, मतलब डाउन ट्रेंड में लो टेकआउट होना नहीं चाहिए, मतलब लो को ब्रेक करना नहीं चाहिए. That's why I told this is in the support area. Support में है. जी. इसका बीच में बना है and market going up. Example of bearish harami. See, market going up, green color candle, red color candle inside the green color candle, not break is high, and market going down. सेम एज इसको हम इनसाइड बार कैंडल भी बोल सकते हैं. सेम एज इनसाइड बार भी कैंडल बोलते हैं, लेकिन इनसाइड बार के लिए सर थोड़ा टाइम लगेगा ये करने के लिए, ट्रेडिंग कर लिए, इसमें जल्दी कर सकते हैं. And bearish harami का another example. See, formed at the top of trend, resistance के पास top में बना है green color, then small red color candle inside this green color candle and market going down. Bearish harami. These are very reliable candles. You can follow, no problem. Then we'll come to tweezer top. Tweezer top or tweezer bottom. ये बहुत रेयर केस में बनता है, लेकिन जब भी बनता है काम करता है. आज पर नेम ट्वीजर. जी, जब बनता है मार्केट रॉकेट होता है. जी. एंट्री लेने का चांस नहीं मिलता है सर. ट्वीजर टॉप, as per its name, it will be forming in the top of the, it will be formed in the bottom of the market, but ready to make the market to top. मार्केट को टॉप में ले जाने के लिए बनता है. ये हो गया आपका ट्वीजर टॉप, ऊपर बनता है ये. और ये हो गया आपका ट्वीजर बॉटम, नीचे बनता है. अच्छा, आपको वीक से ट्वीजर बॉटम का बॉटम सेम होगा, ट्वीजर टॉप का टॉप सेम होगा.
मतलब जी। दो ऐसा कैंडल है जिसका बॉटम सेम है, मतलब न्यू बॉटम नहीं बना, न्यू लो नहीं बनाया, एंड दो ऐसा कैंडल है जिसका न्यू टॉप नहीं बनाया। जी सेम इसको ट्विजर टॉप को आप डबल टॉप भी बोल सकते हैं, ट्विजर बॉटम को आप डबल बॉटम भी बोल सकते हैं, एंड ट्विजर टॉप को आप कभी कभी आप एम पैटर्न भी बोलते हैं, या फिर ट्विजर बॉटम को डब्ल्यू पैटर्न भी बोलते हैं। कभी कभी, हर एक टाइम पर नहीं आता है, लेकिन कभी कभी ये बोल सकते हैं। यस, आज पर दिस इसका जो बॉडी का साइज और शेप से आपको पता चल रहा है, नीचे से बायर्स रेडी है मार्केट लेने के लिए, क्योंकि वीक बड़ा है इसका। देखो सेम ट्विजर टॉप में ऊपर से वीक बड़ा है, मतलब कोई ऊपर से इसको प्रेशराइज कर रहा है नीचे लेने के लिए। बस ये ट्विजर बट टॉप रेजिस्टेंस में बनना चाहिए, ट्विजर बॉटम सपोर्ट में बनना चाहिए एक लॉन्ग ट्रेंड के बाद। विल कम फॉर एग्जांपल, ये निफ्टी का है, देखिए कंप्लीटली एग्जांपल, मार्केट गोइंग अप और ये इसका रेजिस्टेंस है। देखिए रेजिस्टेंस है, मैं बोला था रेजिस्टेंस के पास दो कैंडल बनना चाहिए ट्विजर टॉप। देखिए ट्विजर टॉप जैसे बन गया, उसके बाद देखिए मार्केट धड़म नीचे आया। ओके, अभी देखेंगे ट्विजर बॉटम, नीचे आया, नीचे आने के बाद वही बैंक निफ्टी का है, नीचे देखिए दो कैंडल बना, ट्विजर बॉटम पूरा सपोर्ट के पास बना, जैसे बना उसके बाद मार्केट रॉकेट। ओके, सो अभी आएंगे हम लोग थ्री कैंडल पैटर्न में। थ्री कैंडल पैटर्न में दो मोस्ट इंपोर्टेंट पैटर्न है, एक है मॉर्निंग स्टार, एक है इवनिंग स्टार। मॉर्निंग स्टार बुलिश, इवनिंग स्टार बियरिश। मॉर्निंग स्टार कैसे बनता है आपको देख लो। एक डाउन ट्रेंड रहेगा, एक बड़ा सा रेड कलर कैंडल, इधर एक बड़ा सा ग्रीन कलर कैंडल, उसका बीच में एक छोटा सा स्पिनिंग टॉप बन सकता है, छोटा सा इन्वर्टेड हैमर भी, सॉरी हैमर भी बन सकता है, नहीं तो छोटा सा कोई डोजी भी बन सकता है, उसको हम लोग मॉर्निंग स्टार बोलेंगे। मतलब डाउन ट्रेंड खत्म हो गया, ये छोटा कैंडल आपको बताता है अभी सेलर्स के पास पावर नहीं है, और ग्रीन कलर आपको बताता है अभी बायर्स ने मार्केट को अपना कब्जे में ले लिया, कवर कर लिया। मार्केट मस्ट बी इन डाउन ट्रेंड, देयर शुड बी अ लार्ज bearish candle, the third candle should be separated from the real body of the first bearish candle, then market will be go up. See example of Kotak Bank, market fall, continuous fall, this is the pattern of morning star. See morning star, red color, big candle, small red color candle, last one, and green color candle proves that buyers are take over the market and market jumps. Okay, लाइव एग्जांपल दे बैंक निफ्टी में बना था, देखिए रेड कलर कैंडल, ग्रीन कलर कैंडल, उसका बीच में एक छोटा सा कैंडल, वो भी सपोर्ट में बना था, मार्केट उसके बाद जंप हो गया। इसको बोलेंगे हम लोग मॉर्निंग स्टार। एंड दीज कैंडल्स आर मोर इफेक्टिव कैंडल than single candlestick pattern and double candlestick pattern. These candles are more reliable because यहाँ पे तीन कैंडल काम कर रहा है। Then we are coming to evening star, green color, red color, और यहाँ पे छोटा सा रेड कलर रहेगा। अप ट्रेंड होना चाहिए, अप ट्रेंड होने के बाद एक लंबा सा लॉन्ग कैंडल बॉडी वाला बुलिश कैंडल बनना चाहिए। सेकंड कैंडल जस्ट लाइक ए स्टार कैंडल, छोटा सा कैंडल रहेगा, जैसे कि पता चलेगा अपने को अभी बुल का खेल खत्म हो गया है, बियर इसमें कवर कर सकता है। फिर और एक रेड कलर कैंडल टू पुश द मार्केट डाउन, एंड आफ्टर दैट मार्केट विल बी गो डाउन। आज एग्जांपल हियर, देखिए मार्केट कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में, बैंक निफ्टी का है, ग्रीन कलर कैंडल, रेड कलर कैंडल, बीच में छोटा सा कैंडल, और ये जो छोटा सा कैंडल है ये has the power to change the market. You can say this is a doji, yes or no? This middle candle is the doji candle.
Okay. Perfect doji. Yes, inside doji. But if we combine these three candles, this is giving you more information, more confirmation, more security, and the market will fall down. This is evening star. So now this page I am sharing you, you just check these candles. If you have any doubt, please ask. This is bullish candlestick patterns. This is bearish candlestick patterns. This is single. This is 2 candle. This is 3 candle. This side is purely bullish side. This is purely bearish side. Have a look, and if you have any doubt or something, please ask me. Okay, sir. This is bullish side. This is bullish candle side. This is single. This is double. This is triple. This is bearish side. This is single candle. This is double candle. This is triple candle. Have a look. If you have any doubt, you can ask. No problem. You this side, you just forget this thing, because this is not important now. This is neutral candles. Only you follow this bullish and bearish according to their sizes. 1 candle or 2 candle, 3 candle, go through, and if doubt, any ask. And then we'll go to live market, not live market. We'll go to any script. You can ask. We will check there which type of candle forms there, and we'll see after that what is happening in the market. स्टार में हेलो जी सर. हाँ, मॉर्निंग स्टार में आप देखेंगे तो बुलिश मॉर्निंग स्टार में पहला वाला वो ब्लैक कैंडल, ये तो आपका बुलिश कैंडल हो गया. मॉर्निंग स्टार में हाँ, नीचे एकदम नीचे. हाँ ओके. ये हाँ, ये तो बुलिश कैंडल. इसके नीचे ये भी बुलिश. नहीं, ब्लैक वाला रेड कैंडल. एक्चुअली मेरा बात सुनिए. जो हम लोग जैसे ग्रीन और रेड देखते हैं, यूरोपियन रीजन में वो लोग उसको ब्लैक और व्हाइट देखते हैं. ओके. हम लोग जिसको ग्रीन देखेंगे वो लोग उनको व्हाइट देखेंगे. हम लोग जिसको रेड देखेंगे वो लोग उनको ब्लैक देखेंगे. ओके. अच्छा. ओके. So this is black means red, white means green. Okay. Just have a look. So this is morning star. सर जी सर. आप मुझे थोड़ा वो होस्ट कर दीजिए. मैं कुछ चीज दिखाता हूँ. मैंने हैंड ओवर करूँ? हाँ जी. कैसे मैं ट्रांसफर कर देता हूँ. ओके. वो तो मुझे पता नहीं. आपको पता होगा. नहीं, मुझे एक्चुअली जूम का मालूम नहीं है. जिसको पता है कैसे. सर पार्टिसिपेंट्स में जाइए, वहाँ पे शुभंकर को राइट क्लिक करके मैं का जो होस्ट कर दीजिए. मैं का जो होस्ट या मैं का को होस्ट दोनों कर सकते हैं. ओके 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 ओके. को होस्ट कीजिए. को होस्ट कर दीजिए. Yes, I already make it. You can try. Yes. ना मैं होस्ट कर सकता हूँ. सो पहले ये जो आपने अभी देखा, सर ने सैम ने जो भी बोला, पहले तो सैम आपको बहुत बहुत बधाई. आपने बहुत मतलब लेबर दिया ये पीपीटी बनाने के लिए. ठीक है. बहुत टाइम लगा है. मैं भी करता हूँ कभी कभी, तो मुझे भी पता है ये पीपीटी बनाने में कितना टाइम लगा था. तो पहले तो सबको जो भी पार्टिसिपेंट है उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं वो खुद को अनम्यूट करे, सो दैट उनका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं. तो अभी पहले चार्ट्स देखिए. सर ने जो भी डिस्कस किया यहाँ पर चार्ट्स के बारे में, मतलब कैंडल्स के बारे में, लेकिन लाइव मार्केट में आप जब देखेंगे तो वहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि आप नया ट्रेडर है, मार्केट में कंफ्यूज हो सकते हैं. ठीक है. तो इसके लिए आप ये ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है, ये फ्री चार्टिंग सॉफ्टवेयर है.
तो आपको यहाँ पर ये जो एफएक्स वाला ऑप्शन है ना, सॉरी शुभंकर आपका स्क्रीन शेयर नहीं हुआ, ये सर का स्क्रीन शेयर है अभी। सर का स्क्रीन शेयर कैसे करना है? आपका जो ओके मे बी जस्ट ए मिनट, हो गया अभी? अभी आ रहा है, ओके आ गया अभी आ गया। तो ये मतलब आप सबको तो पता है ट्रेडिंग व्यू मतलब नो डिले चार्ट देता है हमें, चार्टिंग प्लेटफॉर्म देता है एंड विद फ्री ऑफ कॉस्ट। 3 इंडिकेटर के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं इसको, जो भी मार्केट में नया है उनको भी पता होना चाहिए। सो यहाँ पर आपको क्या करेंगे, आप जब मार्केट देखेंगे कि लाइव मार्केट में कौन सा क्या पैटर्न बन रहा है आपको कैसे पता चलेगा, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए आपको ये चार्ट ओपन करके एफएक्स पर जाना है एंड एफएक्स पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर सभी तरह के कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर होगा। तो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक पैटर्न आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता, जो आपको अच्छा लगता है। जैसे मुझे दोजी, ड्रैगन फ्लाई दोजी, इवनिंग स्टार, ग्रेविस्टोन दोजी, हैमर, हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, स्पिनिंग टॉप ब्लैक, स्पिनिंग टॉप व्हाइट, ये पैटर्न मुझे चाहिए। तो इसलिए ये क्या करता हूँ, मैं इसको स्टार करके रखा हूँ। यहाँ पर आप जाएंगे तो कर्सर लेंगे तो यहाँ पर ये मतलब स्टार हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली कहाँ पर आ जाएगा, ये जब स्टार हो जाएगा, देखिए जब स्टार हो जाएगा ना तब आप फेवरेट ऑप्शन में जाएंगे, फेवरेट ऑप्शन में ऑटोमेटिक ये दिखाई देगा आपको। सपोज यहाँ पर दोजी है, ये दोजी ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ पर चार्ट पर दिखेगा। ओके, जो इंडिकेटर आपको चाहिए वो जस्ट आप वहां पर ऐड कर सकते हैं। एंड ये समझ में आ गया, क्लियर हो गया यहाँ पर? नहीं शुभंकर क्लियर नहीं हुआ जी। क्वेश्चन क्या है आपका, पूछिए। आपने बोला कि जो कैंडल्स हमने सिलेक्ट किया वो यहाँ पे कैसे पॉइंट कैसे होगा, चार्टिंग प्लेटफॉर्म में कैसे पहुंच? हाँ, ये फेवरेट ऑप्शन पर आप जाएंगे जब ना, जब फेवरेट ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करते ही ये दोजी दिखाई देगा। जस्ट ए मिनट, मैं दोजी किया हूँ, जस्ट ए मिनट। यहाँ पर आप सपोज मैं यहाँ पर हैमर देन दोजी, ये दोनों को मैंने यहाँ पर ये सॉरी हमारी हुआ है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हैमर आपको चार्ट पर दिखाई दिया, एच लिखा हुआ है एंड हैमर का क्या इंपॉर्टेंस है ये आपको यहाँ पर चार्ट देगा। ठीक है, देन अगर आपको दोजी करना है, देखिए मैं ऑटोमेटिकली क्या करता हूँ, मैं ऑटोमेटिकली इनसाइड बार स्ट्रेटजी, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं इनसाइड बार स्ट्रेटजी यूज करता हूँ। जैसे आप इनसाइड बार यूज करेंगे ना, इनसाइड बार पैटर्न, ये ऑटोमेटिकली आपको दिखाई देगा कि कौन सा पैटर्न कहाँ पर इनसाइड बार बन रहा है। यहाँ पर देखेंगे इनसाइड बार, कंटिन्यू इनसाइड बार देन फॉल, यहाँ पर देखिए कंटिन्यू इनसाइड बार, लेकिन इसका हाई टेकअप नहीं हुआ या फिर लो टेकअप नहीं हुआ, या फिर इनसाइड बार कैंडल मोस्ट ऑफ द टाइम आपको यूज करना है 3 बजे से पहले। 3 बजे के बाद अगर इनसाइड बार कैंडल बन रहा है तो इसका इंपॉर्टेंस आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आप वहां पर ट्रेड करने का चांस नहीं मिलेगा आपको। देखिए यहाँ पर इनसाइड बार बना, लेकिन नेक्स्ट डे गैप डाउन ओपन हुआ, तो इसको आपको ट्रेडिंग करने का चांस नहीं मिला था। क्लियर? सपोज यहाँ पर देखिए मार्केट आप ट्रेंड, उस दिन मैं हर टाइम बोल रहा था मैं भी ये बुल ट्रैप है, मैं भी ये बुल ट्रैप है, फ्राइडे के सेशन पर जो भी टेलीग्राम चैनल पर है। देखिए यहाँ पर इनसाइड पर किसके बेसिस पर मैंने, देखिए हर एक चीज आपको मैं टेलीग्राम पर शेयर नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर देखिए कंटिन्यू इनसाइड बार बना रहा था, एक बिग कैंडल देन इनसाइड बार, एक बिग कैंडल रेड कैंडल इनसाइड बार, बिग कैंडल ग्रीन कैंडल इनसाइड बार, एंड इनसाइड बार कैंडल का हाइज भी टेक ऑफ नहीं हो रहा था, एंड जैसे इसका लो ब्रेक किया शार्प फॉल, एंड यहाँ पर जब पड़ रहा था गिर रहा था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इनसाइड बार कैंडल, ये बिग मदर कैंडल देन इनसाइड बार मदर कैंडल, ये जस्ट मिनट मैं आपको मार्क करके दिखा, ये देखिए ये इसको मदर कैंडल बोल सकता है, देन ये इनसाइड बार, तो मदर बार, ये जो गोल जो राउंड दिया है अभी, ठीक है, इसको मदर कैंडल बोलेंगे। आ गया, या तो मदर कैंडल का टॉप को ब्रेक करना है या फिर मदर कैंडल का बॉटम को ब्रेक करना है। हाँ। ओके, ठीक है, देखिए कितना इनसाइड बार कैंडल है मार्केट जब भी शुभंकर इधर एक साथ 2 कैंडल का प्लॉटिंग हम लोग कर सकते हैं, जैसे आपने इनसाइड बार किया और दो कैंडल का एक साथ कर सकते हैं।
हाँ 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 जरूर, मैं यहाँ पर मेरा इंडिकेटर है इसीलिए मैं दिखा नहीं, जस्ट मिनट में आपको दिखा क्लियर कर देता हूँ। सपोज यहाँ पर 3 ही कैंडल, 3 ही इंडिकेटर आप यूज कर सकते हैं फ्री में, ठीक है। अच्छा फ्री वर्जन में अच्छा 3 कैंडल यूज कर सकते हैं। तो अभी मैं 2 लगा लिया एंड अभी और क्या है, हैमर लगा लिया, ये तीनों, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये 2 बन गया, यहाँ पर ये हैमर बन गया। तो यहाँ पर देखिए मार्केट जब भी अपसाइड पर जा रहा था, रिकवर के बाद अपसाइड पर जा रहा था, यहाँ पर कंटिन्यू 2 बना रहा है, मतलब सॉरी इनसाइड पर कैंडल बना रहा है, मार्केट अपसाइड देन इनसाइड पर कैंडल। तो इस तरह आप मतलब आप अगर बिगिनर है तो बिगिनर में तो उतना आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगा मार्केट में, सो दैट आप इस तरह यूज कर सकते हैं अगर आपको कैंडलस्टिक के बेसिस पर ट्रेड करना है। हो गया अभी क्लियर है सबको? जी सर, आप अभी क्या करेंगे? मैं थोड़ा एग्जांपल उसको दिखाएंगे, वही ट्रेडिंग व्यू में मैं उनको एग्जांपल दिखाऊंगा जो जो हम लोगों ने पढ़े हैं, हाउ इट इज ओरिजिनली हैपेंस इन द मार्केट और नॉट। यस सर। ओके सर, तो कंटिन्यू कीजिए। कैन आई शेयर फ्रॉम माय साइड स्क्रीन? जी जी सर। मैं मेरा स्क्रीन कैसे क्लोज करूं? सेम शेयर के ऊपर आपको वापस क्लिक कर दीजिए और क्लोज हो जाएगा। ओके सर। ओके सर, आप कौन है? आपका शुभ नाम क्या है? धर्मराज बोल रहा हूँ, शुभंकर। ओ धर्मराज, ओके ओके सर। हमें इतना नॉलेज है नहीं। चलता है सबको, हर चीज का नॉलेज थोड़ी होता है। आपको ट्रेडिंग के बारे में जिसके बारे में जरूरत है उसका नॉलेज है ना, बहुत है। ओके सर। ये यहाँ पे दिखा रहे होस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग। हाँ ठीक है ना, तो आप क्या है मुझे आप अभी शेयर कर सकते हैं। नहीं मेरा नहीं हो रहा है ना अभी। नहीं आ गया। नहीं स्टॉप कर दिया अभी। जी आप अपना स्क्रीन शेयर कीजिए। नहीं हो रहा है। नहीं, शुभंकर दा को आपको होस्ट बनाना है। शुभंकर दा आप सैम सर को होस्ट बना दीजिए। मैं होस्ट हूं अभी, ठीक है। ओके नो प्रॉब्लम। होस्ट या तो आपको कैसे होस्ट कैसे करना है अभी? वही पार्टिसिपेंट्स में जाइए, सैम सर के ऊपर राइट क्लिक करके मैक होस्ट कर दीजिए। ओके सर। ओके, अभी हो गया सैम? यस। ओके सर, कंटिन्यू कीजिए। ओके। मैं अभी शुभंकर जी ने जो बोला वही चीज मैं बोल रहा हूँ। उसको थोड़ा सा उसमें क्या है, हम लोगों ने जो प्रैक्टिस किया उसको अभी हम लोग देखते हैं। सपोज बैंक निफ्टी है, वही ट्रेडिंग व्यू सर ने शेयर किया था, वही ट्रेडिंग व्यू है। हम लोग जाएंगे इंडिकेटर में, उस पर लिखो कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ऑल कैंडलस्टिक पैटर्न्स आ गया अपना। ओके, एक साथ आप यूज कर सकते हैं। एक साथ आएगा तो हम लोग देख लेंगे कि जो पढ़ाए वही हुआ है कि नहीं, और कुछ नहीं। यहाँ पे 3 है, इसको मैं एक काट देता हूँ। मतलब वो कैंडलस्टिक पर क्लिक कीजिए ना, देना जाएगा। और उसको येलो कर दीजिए। आपको हर वक्त टाइप करना नहीं पड़ेगा। जी आ गया अभी देखिए बहुत सारा चीज क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ एनगल्फिंग, बियर इज एनगल्फिंग देख लीजिए। ये आपको बनाए रेडीमेड दे रहा है। बियर इज एनगल्फिंग आपको मालूम है टॉप में बनेगा क्या होगा। देखो टॉप में बना है, मार्केट हाई था, देखो उस दिन से मार्केट हाई जा रहा था। बियर इज एनगल्फिंग यहाँ पे बना। मैंने जो शेयर किया वहां पर आप एक यूज कर सकते थे, और अगर आप ऑल कैंडलस्टिक यूज करेंगे तो आपको एक ही पैटर्न में सब कुछ दिखाई देगा।
ये सर नहीं, मैं ये बहुत बता रहा हूँ, हम लोगों ने आज जो जो कैंडल पढ़ा ना वो यहाँ पे कैसे हो रहा है वही दिखा रहा हूँ बस, क्योंकि एक एक ढूंढेंगे तो टाइम लगेगा। नहीं नहीं नहीं, मैं आप ठीक है सर, वो मेरा जो क्लियरिटी था वो क्लियर कर दीजिए। मैंने एक ही इंडिकेटर के बारे में बोला ना, इसलिए देखिए ये क्लियरली अप ट्रेंड मार्केट है, अप ट्रेंड मार्केट ऊपर जा रहे हैं। ओके, ये है आपका बियरिश एनगल्फिंग, 2 बार बना, यहाँ पे भी बियरिश एनगल्फिंग है, तो मार्केट नीचे जाएगा। देखो उस दिन मार्केट, उसके दूसरे दिन मार्केट डाउन ट्रेंड नीचे खोला, यहाँ पे खोला। सर ये जो कैंडल बना है ना, ये जो बिग बियरिश कैंडल बना है, मुझे पता ही नहीं चला मार्केट इतना गैप डाउन। देन मैंने कैलकुलेशन करते गया कि मार्केट में हुआ क्या था, देन मुझे समझ में आया इतना गैप डाउन ओपन हुआ। एक्चुअली जब मार्केट सेटल हुआ था, मतलब प्री ओपन में, तब मार्केट फ्लैट ओपन था, मतलब 50 to 60% में भी नेगेटिव था, फ्लैट ओपन। यहाँ पे देखिए डोजी बनाए, डोजी, ये कैंडल आपका हो गया डोजी, वो भी बेस पे बनाए, मार्केट गोइंग अप, एग्जाम्पल। फिर इधर देखिए बेयरिश आरएमई, मार्केट गोइंग डाउन, बेयरिश एनगल्फिंग। जी सर, बेयरिश एनगल्फिंग ये वाला। यहाँ पे देखिए नीचे बना डोजी, तुरंत रिवर्स कर दिया थोड़ा सर टाइम। यहाँ पर इनसाइड बार नहीं दिखाई दे रहा है, इनसाइड बार नहीं दी, मैं इनसाइड बार दूसरा टाइप कर दूंगा, आ जाएगा जी, देखिए। वहां पर ऐड कर देना। जी सर, यहाँ पे देखिए डोजी कंफर्मेशन, मार्केट ऊपर 100 पॉइंट्स मूव। सिर्फ बनना चाहिए, आपको देखना है सपोर्ट या रेजिस्टेंट पे बनना चाहिए, ऐसा नहीं कि मिडिल पे यहाँ पे बन के नहीं होगा। देखिए ये कंप्लीटली, आप पूछ रहे थे ना कभी किधर कैसा ट्रेडिंग करना, देखा आप, ये कंप्लीटली एक सपोर्ट जोन पे मार्केट है। देखिए कंप्लीटली एक जोन पे मार्केट यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे डोजी बना, ऊपर जाएगा, गया 100 पॉइंट तक ऊपर गया। और एक क्लियर, जो भी नया है मार्केट में, ठीक है, उनको एक क्लैरिटी चाहिए कि मार्केट सपोज 600 पॉइंट गिर गया, लेकिन हम क्या सोचते हैं कि 600 पॉइंट गिर गया, मुझे 600 पॉइंट ले नहीं सकता। देखिए आपका टारगेट मैक्स टू मैक्स 100 पॉइंट होना चाहिए। मार्केट 600 गिरे, 1000 गिरे, लेकिन आपको ये ट्रेडिंग कंटिन्यू करना चाहिए आने वाले 10 साल 20 साल तक। तो आपको एक हैबिट बनाना चाहिए कि मेरा, जैसे मैं एंट्री लेता हूँ, मुझे 40 पॉइंट मिलता है, मैं एग्जिट कर जाता हूँ। आपको टारगेट, मिनिमम टारगेट 40 पॉइंट रखना है। आप ऑप्शन में भी ट्रेड कीजिए, आप फ्यूचर में ट्रेड कीजिए, आप ऑप्शन सेलिंग कीजिए, कुछ भी कीजिए, 40 पॉइंट मिनिमम टारगेट और मैक्सिमम 100 पॉइंट। यहाँ पे देखिए क्योंकि मार्केट आपको हर दिन आपको 600 पॉइंट 700 पॉइंट का मूवमेंट नहीं देगा। मार्केट आप जस्ट फॉलो द रूल। अभी देखिए मार्केट नियर बॉटम है, बॉटम के पास नियर था, ये कुछ बना नहीं, सपोज ये कुछ बना नहीं है, बुलिश एनगल्फिंग बॉटम पे बना, मार्केट ऑफ अराउंड 200 पॉइंट्स ऑफ। नेक्स्ट डे देखिए फिर यहाँ पे बॉटम बना, या बॉटम में डोजी बना। ये क्या सर आपने ऑल इंडिकेटर सेट कर दिए? ऑल इंडिकेटर्स। देखिए मिस्टर गौरव जस्ट चेक, देखिए ये जो एरिया है ये सपोर्ट एरिया है, बॉटम है कि नहीं? हाँ, ये बॉटम एरिया। आगे क्या बना आपने देखा नहीं, यहाँ पे मार्केट कुछ हुआ नहीं, आप इधर ही हो, आगे क्या होगा आपको मालूम नहीं है। आपने देखा यहाँ पे डोजी बना है, यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग बना है, नीचे डोजी बनेगा, बुलिश एनगल्फिंग बनेगा, क्या होगा? मार्केट ऊपर जाएगा, देखिए अप ट्रेंड तुरंत। बस जगह पोजीशन पे बनना चाहिए। अभी देखो यहाँ पे हमर बना, बुलिश एनगल्फिंग बना, दोनों एक साथ। देखिए ये हमर हो गया, हमर, ये भी इन्वर्टेड हमर, ये भी स्पिंडल टॉप, और ये बुलिश एनगल्फिंग, चारों किधर बना? वो भी मार्केट का बॉटम में, सपोर्ट में, जैसे शुभंकर सर ने बोले थे बॉटम में बना। देखो ये पूरा बॉटम है बना। यहाँ पे क्या सर होगा? एक बार सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना भी थोड़ा सा वो मैं बता देंगे? ये खत्म होने के बाद ना ये पूरा मैं दिखाऊंगा आगे कैसे क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग। ये बस एक बार हम लोग इसको कवर करते हैं। नेक्स्ट सेशन में क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर एक काम है, एक सेशन कर लेना। देखिए ये पूरा सपोर्ट पे बना है। अब तो याद कर लो कि सपोर्ट क्या है, बस देख लो, सपोर्ट है, बॉटम है, सब कुछ है। ये देखो ये बॉटम है, मतलब वो जो लॉस है वो लॉस कंटिन्यू टेस्ट हो रहा है, लेकिन उसको ब्रेक नहीं हो रहा है। मतलब वो अगर आप चार्ट को
सर आप थोड़ा चार्ट को 15 मिनट में कर लेना। हाँ सर करता हूँ मैं, इसको दिखाने के बाद कर देता हूँ सर। ओके सर। देखिए बॉटम में हैमर बना, बॉटम में बुलिश एनगल्फिंग बना, तो क्या हो सकता है, मार्केट ऊपर जाएगा, गए कि नहीं देख लो, गया उसके बाद तुरंत 400 पॉइंट्स तकरीबन गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर बॉटम बना, यहाँ पे फिर बॉटम, इससे नीचे ये है जो कंडीशन में बड़ा हम लोग पढ़े थे उसी हो रहा है। देखो डाउन ट्रेंड, नीचे आया मार्केट, बॉटम में बुलिश एनगल्फिंग, फिर यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग, आप देखो यहाँ पे डोजी, यहाँ पे हैमर, यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग, यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग, मार्केट क्या होगा, ऊपर जाएगा, गया देखो यहाँ पे गया मार्केट ऊपर 200-300 पॉइंट, खत्म कहानी। उसके बाद आप कोई भी ट्रेड कंपनी का नाम बोलो, हम लोग देखेंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग ने बैंक निफ्टी प्रैक्टिस किया था, बैंक निफ्टी देख लिया, दैट इज योर चॉइस। एनी स्टॉक्स, अच्छा मूवमेंट वाला स्टॉक्स बोलिए। गौरव प्लीज। सर रिलायंस। रिलायंस, बाटा इंडिया, बाटा इंडिया। सर बाटा अभी स्लो मूविंग हो गया हैं? शुभंकर का फेवरेट है, शुभंकर। ICICI, No, Reliance. Okay, we'll see impact Reliance, check, no problem. देखिए कभी कोई भी दिन देखिए, एवरीथिंग इज वर्किंग इफ यू आर फॉलोइंग द रूल्स। ओके देखिए यहाँ पे मार्केट अभी टॉप पे है, ये मार्केट टॉप, इसके ऊपर गया नहीं कभी। देखिए इसको आप डबल टॉप भी बोल सकते हैं, या फिर हाँ। ट्विजर टॉप जो था वो पैटर्न भी आप बोल सकते हैं, जो बोल मैंने सकते बोला हैं। वहां पर। देखिए यहाँ इससे पहले आइए, देखिए मार्केट टॉप पे है यहाँ पे। सर थोड़ा रिवर्स में आइए, जहां पर अपने ट्विजर टॉप बनाया जी। देखिए हमने ट्विजर टॉप पर क्या पढ़ा था कि दोनों कैंडल का टॉप सेम होगा, लेकिन अगर यहाँ पर देखेंगे जो बुलिश कैंडल है उसका टॉप सेम नहीं है, तो कॉपी बुक पैटर्न एंड चार्ट पैटर्न दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंसेस आता है। ओके देखिए, am I right, sir? जी जी जी, ये देखिए मार्केट अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में डोजी बना, यहाँ पे देखिए डोजी बराबर है कि नहीं, डोजी विजिबल। और सर और एक चीज यहाँ पर आप देखेंगे तो इसको एक राउंडिंग बॉटम भी पैटर्न बना था, लेकिन उसका हाई टेकअप नहीं हुआ, इसीलिए मार्केट नीचे गिर गया। सर ये जो राउंडिंग बॉटम, डबल टॉप, डबल बॉटम, बाद में अपना एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, ये जो कप एंड हैंडल पैटर्न, और ये सब उसके साथ जो ट्रायंगल पैटर्न है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व है, वो सब एक इकट्ठा करके हम लोग लाएंगे उसको सर, कॉम्बिनेशन ऑफ वो चार्ट पैटर्न। हाँ चार्ट पैटर्न, क्योंकि इसको अगर हम लोग बीच में घुसाएंगे तो हड़बड़ी होगा, तो इसलिए मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूँ। ठीक है जी देखिए टॉप में हैमर बना, यहाँ पे चेक, टॉप में हैमर यहाँ पे बना, टॉप में हैमर मतलब मार्केट फॉल किया। देखिए सॉरी डोजी बना, डोजी, अभी देखो फिर वही टॉप गया, टॉप में फिर डोजी बना, क्या होगा, नीचे जाएगा। अभी मार्केट नीचे आ गया, नीचे आने के बाद यहाँ पे हैमर बन रहा है, देखिए हैमर, इन्वर्टेड हैमर, फिर वापस डोजी, मतलब ये जो चार है आप मुझे बताओ, अभी देख लीजिए सर ये जो रेड वाले कैंडल है, हाँ सर, हाँ जहां पर अभी आपका कर्सर है, यहाँ पर देखिए फर्स्ट रेड कैंडल, देन इनसाइड बार कैंडल, देन इनवर्ट हैमर पैटर्न। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना ज्यादा रिवर्सल कैंडल बना है। देखिए एक आपको डोजी जैसा छोटा सा हैमर मिल गया, इन्वर्टेड हैमर मिल गया, डोजी मिल गया, और ये इनसाइड बार मिल गया, और मार्केट क्या है, अभी डाउन ट्रेंड में है, मार्केट नीचे आ रहा है। मार्केट नीचे आने के बाद ये बॉटम में आपको इतना कंफर्मेशन मिल रहा है, क्या होगा, मार्केट ऊपर जाएगा, देखो गए कि नहीं गया, देखो मार्केट ऊपर चला गया, उसके बाद देखो पूरा मार्केट स्टोरी बता रहे, फिर डोजी बना, देखो डोजी, एग्री,
डोजी, यस। मार्केट आया नीचे डाउन, फिर मार्केट नीचे आया, फिर बॉटम में देखो बुलिश एनगल्फिंग, देखो ये हो गया आपका बुलिश एनगल्फिंग, ये दो कैंडल हो गया बुलिश एनगल्फिंग, ये कैंडल हो गया आपका इन्वर्टेड हैमर। नीचे क्या होगा, मार्केट ऊपर जाएगा, गए कि नहीं, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर जाने के बाद देखो ये कौन सा कैंडल है, एनीबॉडी, ये कौन सा कैंडल है? इन्वर्टेड सॉरी बियरिश एनगल्फिंग, नहीं ये तो बियरिश एनगल्फिंग है, इससे पहले ये है इन्वर्टेड इन्वर्टेड शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार। ओके देखिए ऊपर शूटिंग सर स्टार बनेगा, इन्वर्टेड हैमर भी है। हाँ इन्वर्टेड हैमर भी है सर। ओके ऊपर बना, ये बनने के बाद मार्केट आया नीचे, एंड जब नीचे आ रहा था तब देखिए कंटिन्यू इनसाइड पर बना रहा था, कंटिन्यूअस इनसाइड बार बना रहा था, फिर थोड़ा सा नीचे आया, इनसाइड पर कैंडल का देखिए यही आपको फिर यहाँ पे डोजी ने फिर सपोर्ट दिया, देखो और कंफर्मेशन मिला कि भाई डोजी और मतलब नीचे वो जाएगा। इन्वर्टेड हमारा मतलब इनसाइड पर, हाँ अब फिर दोनों और कैंडल को अगर एक साथ करेंगे तो इनसाइड पर बन गया। जी सर, फिर और नीचे आ गया मार्केट। अभी आप बोल रहे थे ना बाटा इंडिया में, बाटा इंडिया में दिखा देता हूँ, ईच एंड एवरी स्टॉक इट विल बी वर्क इफ यू फॉलो द रूल्स। बाटा इंडिया नहीं, यहाँ पे जो डोजी बना है तो हम लोग तो यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो मार्केट ऊपर जाएगा। कैसे वो ऊपर बना है ना, डोजी नीचे बनेगा तो नीचे ऊपर जाएगा, ये ऊपर बना है देखो आप जैसे देख यहाँ लो। पर डोजी बना, नीचे में डोजी बना, हाँ डोजी बना है, ऊपर गया ना, हाँ देखिए मार्केट नीचे में डोजी बना है, ऊपर गया मार्केट, दिस इज डोजी। ट्रेंड के बीच में अगर कहीं डोजी बन रहा है तो उसका इम्पोर्टेंस उतना नहीं होता। हाँ ओके, दो चीज, या तो ऊपर बनना चाहिए या तो नीचे बनना चाहिए, सपोर्ट नहीं तो रेजिस्टेंस के पास। देखिए यहाँ पे डोजी बना, मार्केट गया ऊपर, देखिए ओके। हम लोग सर अभी देखें, म्यूट कर दीजिए प्लीज। अभी देखेंगे बाटा इंडिया, बाटा इंडिया देख लेते हैं। बाटा इंडिया में मैं सिर्फ पूछूंगा, आप लोग बताइए सर प्लीज। सर बाटा इंडिया को 5 मिनट में कर लीजिए। हाँ इसमें थोड़ा इतना वोलेटिलिटी नहीं है। मैं जब प्लॉटिंग वो सिंगल कर रहा हूँ तब आ रहा है, लेकिन वो जब ऑल पैटर्न्स प्लॉटिंग कर रहा हूँ नहीं आ रहा है। मैं बता दूंगा, पैटर्न नहीं आ रहा है। हाँ आप वहाँ पर देखिए पीबीएस कोई आपका इंडिकेटर यूज किया हुआ है, उसको काट दीजिए। तीन फ्री में रहेगा, आप एक निकाल दो। अच्छा सर किसके उधर से आवाज आ रहा है तो म्यूट करने बोलिए ना। सर कौन किसके साइड से आवाज आ रही है उसको म्यूट कर दीजिए प्लीज। देखिए यहाँ पे ये हाई ट्रेंड में मार्केट है, संतोष मेरे साइड से नहीं, मेरे साइड से नहीं, मैं अकेला बैठा हूँ। संतोष जी शायद हो सकता है, ओ म्यूट हो गया, ठीक है। हाँ ठीक है अभी हो गया। ओके ये देखिए मार्केट एक रेजिस्टेंस पे खड़ा है बहुत टाइम से, यहाँ पे आ गया आपका बियरिश एनगल्फिंग। अगर मार्केट अप में है, बियरिश एनगल्फिंग होगा, क्या होगा, मार्केट नीचे जाएगा, गया देखिए नीचे, देखिए तुरंत। देखिए आप इसको कैसे ट्राई कर सकते हैं, आप कैश में एक ही शेयर बाई कर सकते हैं। आप पहले ऑप्शन पर ट्रेडिंग पर मत घुसिए, कैश में एक स्टॉक लीजिए, ओनली वन स्टॉक लीजिए, उसको बाय कीजिए, देखिए चेक कीजिए, अगर लॉस होगा तो कितना 15 रुपीज 20 रुपया लॉस होगा तो उतना मैंने मतलब आपको हार्ड नहीं करेगा वो। ये देखिए एक डाउन ट्रेंड था, मार्केट नीचे आया, यहाँ पे क्या क्या चीज हुआ जो मार्केट ऊपर लेके गया। देखो पहला हैमर बना यहाँ पे, देखा यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग मिला, फिर हैमर बना, इसका मतलब मार्केट ऊपर जाएगा, गया। सपोज ये हमारे पर अगर किसी ने एंट्री लिया, ठीक है, अगर कोई फ्रेश ट्रेडर, नया ट्रेडर है तो उनका तो मतलब जान हथेली पे आ गया था तो मार्केट तो नीचे चला आया, लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ओके आईसीआईसीआई बैंक भी बोले थे किसने, मैं आईसीआईसीआई बैंक भी देख लेता हूँ, आप बताओ बस मुझे। अभी ये मार्केट तो शिल्पा मेडिकेयर, ओके
आप मुझे अभी बताओ, यहाँ पे मार्केट नीचे से ऊपर गया, इनसाइड पर ऐड कर लेना सर। करता हूँ सर, इसको काट के मैं कर देता हूँ। मार्केट नीचे से ऊपर गया, फिर ऊपर से नीचे आ गया, क्यों? क्या क्या कैंडल यहाँ पे बना, आप चेक कर लो, देख लीजिए क्या क्या बना यहाँ पे। एक बना बियरिश एंगल्फिंग, करेक्ट। फिर बाद में बना डोजी भी है, इन्वर्टेड हैमर भी है। सपोज मार्केट रेजिस्टेंस के पास छोटा छोटा कैंडल बना रहा है, तो ये और एक साइन होता है क्या मार्केट में अप ट्रेंड में जाने के लिए जो बायर्स होना चाहिए वो बायर्स में भी मार्केट पर है नहीं, तो ये भी एक इंडिकेशन देता है कि मे भी मार्केट थोड़ा बहुत कंसोलिडेट कर सकता है या फिर नीचे आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे बियरिश एंगल्फिंग बना, हैमर बना, डोजी बना, फिर डोजी बना, इसका मतलब मार्केट ऊपर है, इतना सब कंफर्मेशन मिल रहा है, मतलब मार्केट नीचे जाएगा। अब तक नीचे आया, बराबर। अभी मैं इनसाइड बार का एग्जांपल देता हूँ सर, एक साथ दोनों यूज कीजिए ना। करता हूँ सर, इनसाइड बार। वो स्ट्रेटेजी वाला यूज कीजिए, स्ट्रेटेजी वाला, ओके। नहीं। ओके, हाँ सर, अभी हो गया। देखिए यहाँ पे उसी टाइम पे इनसाइड बार कैंडल ने यहाँ पे पहले बन गया था, देखिए इनसाइड बार कैंडल, उसके अंदर ये पूरा कैंडल आया था उस दिन, देख लो, इसको तोड़ा नहीं था, तोड़ा कहाँ से? कैंडल का लो ब्रेक किया, जैसे कैंडल का लो ब्रेक करके क्लोजिंग दिया, मार्केट फॉल कर गया नीचे, देख लो। ओके, बहुत बड़ा फॉल हो गया। फिर पीछे आओ, देख लो, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सर थोड़ा पीछे हाँ, ये बिग कैंडल पर जी गैप ओपन हुआ था, देखिए इनसाइड बार कैंडल था, गैप अप ओपनिंग। फिर और थोड़ा पीछे आएंगे हम लोग, देखेंगे, देखो मार्केट ऊपर जा रहा है, देखो मार्केट अप ट्रेंड में है कि नहीं, मार्केट अप ट्रेंड में है। देखो यहाँ पे बियरिश एंगल्फिंग बन गया, इनसाइड बार यहाँ पे बन गया, नेक्स्ट डे फॉल हो गया, नेक्स्ट डे फॉल हो गया। यहाँ पे देखो बुलिश एंगल्फिंग बना और इन्वर्टेड हैमर बना, देखो गिर गया मार्केट ऊपर। तो ऐसे आप प्रैक्टिस करो, देखो पहले कितना मिलता है, कितना हो रहा है कि नहीं, जो आप पढ़ा है आपने वो सब ओरिजिनली मार्केट में होता है कि नहीं, देखो। नहीं होगा, मैं बोल दिया और शुभंकर सर ने बोल दिया ऐसा मतलब कि नहीं होगा करके, आप खुद देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो फिर कुछ फायदा नहीं, अगर हो रहा है तो उसको हम लोग यूज करेंगे। सर होगा तो जरूर, ठीक है। ये देखो एक एग्जांपल मैं बोल रहा था, हम लोग पढ़े थे डोजी अगर नीचे बन रहा है मार्केट ऊपर लेके जाएगा। देखो मार्केट ऊपर से नीचे आया, देखो ये एक डोजी हो गया, ये एक डोजी, ये एक डोजी, देखो ये एक इन्वर्टेड हैमर हो गया, ये आपका और एक डोजी हो गया। ओके, उसके बाद मार्केट बूम, देखो मैं बड़ा कर देता हूँ, देख लो। ओके, डोजी, इन्वर्टेड हैमर, डोजी, और ये कलर का कुछ लेना देना है नहीं, हम लोग जैसे पढ़ा था इन्वर्टेड हैमर का कुछ कलर का कुछ लेना देना है नहीं, जो कलर बने बस नीचे बनना चाहिए, नीचे बन गया मार्केट ऊपर चला गया। यहाँ पे हम लोग कहाँ पे? पटन, हेलो, क्योंकि वो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा ना, तो ये छोटा टाइम फ्रेम पर नहीं होगा। वो क्या बोल रहे हैं, कैसे ट्रेडिंग करेंगे? हाँ सर, ट्रेडिंग का हम लोग आएंगे ना,
यहाँ पे कहाँ पे एंट्री करेंगे वो सर नेक्स्ट सेशन सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड एंट्री। और एनी डाउट आपको ये देखिए और इनसाइड बार कैंडल बना नीचे लाया मार्केट, वही इनसाइड बार कैंडल यहाँ पे बना मार्केट गया ऊपर। और लेकिन ये माइंड पर रखना है इनसाइड बार कैंडल अगर 3 बजे के बाद बन रहा है तो उस पर कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। सो आवर नेक्स्ट क्लास विल बी पैटर्न्स के ऊपर आएगा, पूरा पैटर्न्स जितना भी हम लोगों ने आज पढ़ा, 1 कैंडल वाला, 2 कैंडल पैटर्न, 3 कैंडल। सर वो पैटर्न्स को छोड़ दीजिए, आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंट्री एग्जिट पैटर्न्स बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा। ओके सो नेक्स्ट, आज तो नहीं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड एंट्री एग्जिट एंड एंट्री एग्जिट नेक्स्ट क्लास में। ओके तो अभी किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ पर, ये जो अभी हुआ आज के सेशन पर? एनी क्वेश्चंस? तो क्वेश्चन से पहले तो एक चीज बोलना चाहूंगा कि जो सैम सर ने जितनी मेहनत की ना, सही में बहुत ही ज्यादा मतलब फ्रूटफुल है, और सही में दिख रहा है कि मतलब हर एक कैंडल के बाद एक चार्ट और उसके साथ एक्सप्लेन करना, इसके लिए सर के अप्रिशिएट करना चाहिए। थैंक यू एक्चुअली, थैंक्स, अच्छा मेहनत किया, अच्छा, थैंक यू। ये जो पीपीटी बना है ना, इसको बनाने में अराउंड 5 to 6 आवर्स तो लगे ही होंगे। नो प्रॉब्लम, एक्चुअली इट विल प्रैक्टिस फॉर मी। मैं भी नया ट्रेडर हूँ, ये क्वारंटाइन ट्रेडर है, मैं घर पे रह के सीख गया और शुभंकर सर ने भी सिखाया, तो नो इशू। एनी टाइम कुछ भी रहेगा पूछने को लोग पूछ सकते हो, अगर मेरे बस का बात रहेगा तो मैं समझा दूंगा। and we will try for another। बहुत ही हेल्प हो गई सर, आपने ऐसा बनाया। सर आप एक काम कर देना, वो जो आपका जो टेलीग्राम ग्रुप है ना, या फिर जो ग्रुप है आपका जी, उस ग्रुप का लिंक मेरे ग्रुप पर शेयर कर देना, सो दैट वो भी आपके साथ ज्वाइन हो सके। Okay, I will add this all 12 persons who are here. I will add all 12 persons here. We'll make a separate group for only study। हाँ जरूर, वो कर सकते हैं, वो अच्छा रहेगा। यस सर, स्टडी के लिए, और जैसे सब शेयर भी कर सके, कोई चार्ट में किसी को कोई पॉसिबिलिटी दिख रहा है। Okay, I will add this all Mr. Jetli and Shrikant sir। आप ये भी कर सकते हैं, मेरे में जो नेक्स्ट जन जहाँ से आपको ये लिंक मिला, उस पर आप डिस्कस उस पर जाएंगे तो वहां पर भी आपको मिल जाएगा। वो भी मैंने डिस्कस ओपन करके रखा है, अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप। जी सर। एंड सर ये जो आपने पीपीटी बना, इसको पीडीएफ करके वो ग्रुप पर शेयर कर देना। श्योर, आई विल शेयर। फर्स्ट आई विल मेक अनदर ग्रुप इंक्लूडिंग यू एज एडमिन, उसमें हम लोग स्टडी का सब शेयर करेंगे, उसमें हम लोग से स्टडी का ही शेयर कर देंगे और कुछ नहीं। जी सर, आई सेव दिस नेम एंड शेयर। जी सर, बिल्कुल। नेक्स्ट क्लास कौन सा टाइम पर आएगा? Next class I think we will conduct Friday or Saturday। I think night will be better। Night time Saturday will try। Friday or Saturday। Okay। We will discuss about Friday next class। timing? We will discuss। Okay sir। Okay sir, thank you sir। Okay sir, thank you। Thanks all of to Thank participants। Thank you sir, thank you everybody। Inspiring me। Thank you, really thank you। Thanks। Thank you sir, really। Thank you sir, bye bye। Thanks, no problem, thank you, bless you।